So, friends, we start our discussion today, and today's topic is an uncommon topic, a topic on death. What is the meaning of death? What happens before death? What happens after death? And we have got our senior most member here, Anubhai Doshi, to explain to us. For our benefit, he has studied 3 books on the subject. So let us listen from him. Anubhai Doshi, Chartered Accountant. Rashminbhai, thank you. Amay, as rightly said, the senior most. So, senior most, obviously, this subject of death, moment I read on 7th July in Economic Times speaking tree, I made a small photo and then sent it on our philosophy group. And on 9th July, we were to meet here, and we did meet. And I thought Rashminbhai, in his characteristic style, will certainly take notice of what I had said, and we will discuss about it. But obviously, we discussed something else, far more deeper and far more useful. So I kept quiet. But while getting up, I just politely said, Rashminbhai, what happened to that, my subject? He said, don't worry, here is the book. So he immediately gave me this wonderful book with the name Mrityu Sathe Mitrata, written by Anubhav Varnan ji. And then he said, Aata mein vacho. So, as I thought I must do justice for several reasons. One, obviously, he had hinted that you will have to say something about that book. So obviously, my subjective interest in this academic subject, being, as he rightly said, I am closest to that date, whenever that date comes. Now, having said all that, I'm still feeling like having been invited to a royal gathering of peacocks, and I'm a crow who has been barred and invited entirely because of the goodwill of the Guru. So with this preface, I will share very briefly. The reasons for being brief today is we have so much further other subjects on which Rashminbhai wants to share his thoughts. And as I wrote, for the first time, I saw tremendous joy in what he wants to tell us today, which he expressed in 2 lines in that WhatsApp message. So we are very eager to hear that part of Rashminbhai's presentation. So coming back, so 7th July, what does it say? It's a small write-up in the speaking tree written by Swami Shivanandaji. Now he says death is like a door opening from one aspect of life to the other aspect of the life. He further says death is the end of bodily or physical activity and physical consciousness. It is a transition from one state of being to another state of being. From consciousness to another level of consciousness, from physical to astral. Now, Swamiji says, death opens door to a higher form of life. Now, this was interesting. He says, death, and this is supported by several other things that I read, that it always talks that death follows the Atman or the body going in a higher plane, a gateway to a fuller life. And further clarification, and this was also about bugging me, and which paragraph I had sent in my WhatsApp message to all of you, and that is with regard to the pain.
Swamiji says there is no pain at the time of death. Now, Swamiji himself visualizes, so he has reproduced another part of that. It is too often described that death is comparable to poisonous attack by several serpents and poisonous scorpions. And that is with a view to inculcating a sense of fear in our minds so that we become better behaved citizens to ultimately seek the moksha. And that was again very reassuring that that was only mentioned with a view for betterment. But in reality, several other books which I read apart from this book, they are all unanimous in this one view, saying that there is no pain. If anything, it is a joy. It's a liberation. And આપણે हम हिंदी में भी काफी बोलते हैं कि वो छूट गया, यानी तो मृत्यु आया और क्या यानी ये physical pain that he was suffering while alive in the bodily way, he is liberated. So from a life of pain to a life of peace and happiness and restfulness. Now, second aspect which emerged from this reading is again fairly well known to all of us and almost unanimous, that all of us do know that only the body dies, Atman does not die. Thus, when we call death, the death is only of the physical body, not of our Atma. It is because Atma, several books are saying, is eternal, is Amar, and until such time we get our moksha when we merge with Brahma. Now, Anubhav Anand Ji further states, he quotes several authors, including the one which is by C.W. Leadbeater. And Leadbeater says that death is something which we all die every day. And he very rightly compares death to sleep. He says sleep is temporary death and death is permanent sleep. So he says every night when we go to sleep, effectively we are dying. Our physical form, and then there is yet another form which he calls astral form, and that astral form takes over while we are asleep. And in that sleep, we in that astral form do think and dream of several persons dead and living. And therefore he says it is also possible that while we are asleep, we communicate without our knowledge with the dead. And this all of us have, I'm sure, experienced it, particularly for people who have departed from our life in the recent past. So that's a wonderful revelation that during the day sleep, we literally are in the same physical form or same mental form as a dead person is. And therefore, his caution is be cautious when you go to sleep to think of very good thoughts so that you meet good people during your sleep. Last thought on the subject, and the reason why I'm saying last is, again, is we want to spend more time hearing Rashmin Bhai tell us what he has planned to share with us today. And that thought is on rebirth. Now, again, all views unanimously saying, except we all know some faiths do not believe in rebirth. But by and large, particularly we in this side of the world,
have several authorities which confirm the fact of rebirth, including Gita, including this author, and they say that Gita, and this author cites Gita several places, saying, to put in one sentence, Gita says, whoever is born is bound to die, and whoever dies is bound to be born. So, which in effect explains the theory of rebirth. So, on a lighter note, somebody said to a Swamiji that Swamiji, can you say that, and citing none other than Gita itself, that whoever is born is bound to die, and whoever dies is bound to be born. So he says this mischievous queries that Swamiji, if that is so, then why is the population of the world increasing? So Swamiji gave a wonderful reply. He says, what you say technically is right, that ideally the population should have remained frozen at the same number. But he says that from the animal kingdom, from the animal world of say tiger and lion or whatever, certain souls, because of their noble deeds, deserve to be promoted to being human beings. So that is one reason why we have to account for additional inflow of such souls who become human beings. Secondly, he says, again, particularly Jainism, says that even after going to Devlok, again, if you have to ultimately seek moksha, you have to be born again as a human being. So he says several Devlok persons again have to come back to earth, become human beings, and then take the ultimate moksha. And that's the sole reason why that answers the question about the population being not stagnant but increasing. So this were my few thoughts on the subject. If there are questions, Rashmin will answer them. Like Kanubhai, but does the information remove the fear? As you rightly guessed, and I think you pointedly asked me this question on per telephone, and I replied yes. And therefore, you even wrote in this mail that Kanubai has lost the fear of death, and which is true, that yes, this writing has certainly convinced me that several things. One, that death is not painful, in whichever form it may come, even if it comes in the form of an accident. It's not that I will die in the bed. That would be obviously. But even if assuming I were to be run over by a bus or a train, then also ultimate departure will be peaceful, will be painless. And that is very reassuring, Rashmin Bhai, as it emerged from reading this book. Yes, so now open for discussion. Yes, can I ask one question? Please go ahead. As Kanubhai rightly said, that fear of death goes away once you are liberated from that thought that the death is going to be painful. I, personally speaking, I don't fear death at all. And that is the case with many people, perhaps. They don't fear their own death. Yes. But to recollect, our first meeting of philosophy group, which was the Bombay Society's office, Rashmin Bhai began with this statement that when Arun Bhai was there, Mir Bhai had brought tea and all that. So I'm glad that you have also given up
fear of death. Yes, sir. But there is one catch in this. I have Yes. given up the fear of my death, but I still fear the death of my loved ones. Yes. Correct, correct. So how do you overcome that? That is the issue. Today, if I have to visualize a death of somebody who is very close to me, it suddenly becomes very painful. If I visualize my own death, I'm quite painless. I mean, I don't feel the fear at all. So I think that how do we overcome the fear of the death of the loved ones is, I think, I would like to understand how do we go about that. Yes. A past is made this. आपला नहीं कोई participant. in this book he has Hello. mentioned, that it is right. राजेश सर एक बार हेलो अनाउंस कर दीजिए आपकी बाकी लोग म्यूट रखे एक बार। हाँ मैडम मैडम कुसुम धर्मसी जी का अकाउंट है सर। बोले किसका आवाज है? कुसुम धर्मसी। कुसुम बहन धर्म सिंह। या हाँ, कुसुम बहन आपका आवाज ऑडियो बंद कर देंगे? श्योर थैंक यू। यस प्लीज गो अहेड कनु भाई। हाँ धर्मेंद्र भाई प्लीज, सॉरी। नहीं, अतुल भाई ने पूछा हम्म। that while that the fear of death of our own self is possible to be addressed and be liberated from that, but how do we get over the difficulty or the pain that comes because of the departure of somebody who is so close to us? The answer to that is provided by this way, that just as he says, every sleep is a temporary death, and our death is a permanent sleep. In our sleep, and now you apply your mind consciously tonight, that in the dream, first of all of us do get dreams, howsoever long or short, howsoever frightening or peaceful, but dreams do come to our night sleep. Now, during that time, our body assumes a different format, which he described this as astral form. So, in the sleep, physically we meet you. So, physically, Rashmin Bhai and Atul Bhai meet because it is physical to physical. But when Rashmin Bhai goes to sleep, Atul Bhai goes to sleep, his astral form communicates with various persons whom he dreams. Now the dream comes of people whom you have interacted. It is rarely that you would dream of a stranger whom you have never met. You can't dream because by definition, it's a thought of a person. That person has to be someone either about whom you have read, seen a picture, or whatever. So the point at issue is, and this guy goes to the extent of saying it is possible to communicate in your sleep with the departed soul. It's possible. That's why he says, be very, very thoughtful about at least your last 1 hour before going to sleep, because several experts have brought out that our sleep, our dreams during the sleep tend to reflect what we have thought in the last 1 hour before our sleep. So in short, Atul, the suggestion is, while that no doubt it is painful to have lost a departed soul, but that soul, in fact, he says, several studies have revealed that the departed soul is always in a happier form. Departed soul suffers from no fatigue, because in that world, it is only the physical world that we get tired. In that world, there is nothing like fatigue. So that person, that soul is free to roam around
and does roam around. It visits all the sites that it has missed seeing. Like all of us do know that we would like to see what is Himalayas, the wonderful scenery, etc. But if we have harbored those desires, once we are no more, in that form, we will be free to visit without getting tired. So finally, the suggestion coming from this author is that be rest assured that the departed soul is always in a happier form than he or she was on this earth. And that again was a second refreshing thought. That Correct. often we are all worried that our departed soul has gone. How will she be? Will she be happy? Will she be not? Whatever. To that, there is a unanimous view cited by several experts that by and large, we tend to be in a happier position in that world. Very good explanation. He has done a good study on this. Appreciate. Somewhat getting convinced. When you read this book, all these series of like Respect by Moment, and he saw at the back, there were 12 to 15, 25 books. He ordered all of them. He said, I paid 2,000 rupees and got all 25. Somewhat similar, I got all the 3 books. Each are average cost is 100 rupees. And they make wonderful reading. Wonderful reading. Yeah. So any other query or any other comment? सर Yeah, नमस्कार। yes. मैं खाली एक लास्ट कमेंट करूंगा जो अभी कन्नू हाँ जी। भाई ने बताया ना सर कि जो डिपार्टेड सोल बोलते हैं वो हाँ। जब यहाँ इस मॉर्टल वर्ल्ड में जो स्थिति थी उनकी और हाँ। डिपार्ट होने के बाद दोनों का अगर कंपैरिजन करो तो दैट सोल इज इन ग्रेटर पीस, ग्रेटर सोलेस। तो वो आपके भजगोविंदम जो शंकराचार्य जी हैं उनका जो है ना सर पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, तो जो तकलीफें हैं जो समस्याएं हैं वो इसी वर्ल्ड में है। उसके बाद सोल तो वैसे ही लिबरेटेड रहती है, फ्री रहती है। यानी जैसे एज इफ हम यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पे फिर वापस वही जन्म लेना और वही पूरा सिस्टम चलते रहना, तो जो तकलीफों का अंत है वो सब यही हो जाता है। तो आई थिंक शायद कन्नू भाई वही कुछ कहना चाह रहे थे मेरे ख्याल से लास्ट बात के अंदर, एकदम लास्ट। Yeah. In fact, you have Krishna Kumar. You have touched that very question which I wanted to pose to Rashmin Bhai, and that is this one. That this was what I replied in response to Atul Bhai's query was reassuring. But the doubt still lingers, and that is this, that it negates, or shall I wouldn't say negates, but it does not answer the question you have raised, and which I had thought that if the departed soul is moving around happily, did that and the other, all other authors are indicating that, and I happen to read, which I have not brought, by the book on death by Sadhguru of Isha Foundation. Oh. Very nice, in which he says, which again is in a way refreshing. He says the next birth is virtually instant. Virtually instant. Therefore, the question arises, if that view is right, whether instant or otherwise, then there is the question of the departed soul not having any fatigue, free to roam around wherever that soul wants and all that. So is there a contradiction in what I replied to Atul Bhai and what Krishna has raised this way? So I want you to answer. कृष्ण कुमार जी, आपकी क्वेरी बराबर है? कन्नू भाई ने कहा वही है कि कुछ और है? नहीं सर, ऐसा है कि ये इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है कि इसमें ज्यादा कई बार तो लगता है कि बस सब ठीक है, सब क्लियर है, और अचानक लगता है कुछ नहीं मालूम है, वापस पहले से ज्यादा कंफ्यूजन हो गया इसमें। सो विल कीप ऑन डेलिब्रेटिंग। जैसे दूसरे की क्वेरी सोल्व करना आसान है और खुद की जो क्वेरी जो सोल्व करना मुश्किल है।
जैसे धर्मेंद्र भाई ने जो सवाल पूछा ना, मैं उसके लिए भी थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। हाँ जी। और मैं मेरे लाइव एग्जांपल से बोलता हूँ मैं सर, बिल्कुल। जैसे धर्मेंद्र भाई ने कहा कि मुझे मेरी मृत्यु का फियर नहीं है, लेकिन Correct. मेरे लव्ड वंस का जो है वो उसका फियर है। एम आई राइट धर्मेंद्र भाई? आपका शायद यही क्वेरी था, बराबर right? है। हाँ हाँ हाँ। तो एक तरीके से 50% तो प्रॉब्लम सोल्व होगी, मतलब वैसे समझ। लेकिन जब हम ये समझते हैं कि बॉडीली हमारा आइडेंटिफिकेशन जब तक रहेगा ना सर, बॉडीली आइडेंटिफिकेशन यानी मैं कौन हूं, हु एम आई, तो जब तक मैं बॉडी हूं, मेरी जो फैमिली है वो बॉडी है, तब तक तो ये प्रॉब्लम हमेशा ही रहने वाली है। एंड जैसे ही इस रियलाइजेशन से बाहर निकल जाते हैं कि ये हम सब एक सोल है, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म में, हर 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 सोल की अपनी एक जर्नी है, अपना एक मिशन है, अपना एक वो काम है जो आप बोलते हो ना कि एक मिशन के हिसाब से हम जन्म लेके आए हैं। सो फिर वो अटैचमेंट वाले बंधन से जैसे ही बाहर निकलते हैं ना सर, जैसे ही वो अटैचमेंट तो बॉडीली होता है सर बेसिकली, जैसे ही उस अटैचमेंट से बाहर आते हैं तो ये फियर अपने आप वैनिश हो जाता है सर उसके अंदर। ऐसा मेरा बराबर। छोटा सा सबमिशन है सर उसके लिए। आप जो शब्द बोल रहे थे उसको देह अध्यास, हाँ। देहाध्यास बोलते हैं। अच्छा। कि हम मानते हैं कि ये शरीर ही मैं हूँ। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो ब्रह्म है। हाँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ। ये वेदांत कहता है, ये CWG कहता है। हाँ। बराबर। मगर हमारा जब तक अटैचमेंट शरीर के साथ रहेगा, तब तक ये शरीर का आकर्षण भी रहेगा। यस। और जैसे मेरा शरीर है, ऐसे मेरे फैमिली मेंबर्स का शरीर, मेरे मित्रों का शरीर, और हम शरीर से शरीर का आकर्षण रहता है। यस। तभी हम सोचते हैं कि ये मेरे लव्ड वन का शरीर चलेगा। यस। हम बोलते हैं, समझो कि आपकी मदर, आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, ठीक है? सॉरी। हाँ, तो आपको दुख हो रहा है, मगर मृत्यु तो पिताजी के शरीर का हुआ। ठीक है। पिताजी की आत्मा अमर थी, अमर है, अमर रहेगी। आत्मा को तो कुछ होता नहीं है, जी सर। ठीक है? तो आपके मन को पिताजी के शरीर का संयोग टूट जाने का दुख है। यस। अच्छा, अभी ये एक दुख है, समझो, एक साइड पर रखो। और लोगों को और बहुत सारे दुख होते हैं। कोई जी। बहुत रईस है, बोलेगा अरे मेरा ये गाड़ी बंगला सब छूट गया, अभी अगले जन्म में ये मिलेगा नहीं मिलेगा कहाँ पता है, ठीक है? तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों से या अलग व्यक्तियों से आकर्षण रहता है, और वो आकर्षण टूटने का डर रहता है। जी सर। बराबर। तो वेदांत ये कहता है कि एक प्राइमरी जवाब है, फिर आगे अलग भी जवाब होते हैं। और ये मृत्यु सब्जेक्ट ऐसा है कि बहुत सारे फिलोसोफर्स ने बहुत अलग अलग जवाब दिए हैं। तो अपने मन में जो जचेगा वो सही, ऐसा ही मैं तो कह सकता हूँ। मैं वेदांत ने क्या कहा है, CWG ने क्या कहा है, ये दो बातें आपके सामने रखूंगा। फिर गीता में भी कहा है, और तीनों में कुछ न कुछ अंतर है। आपको जो जचेगा वो आप रखिए। सही बात। मगर ये एक बात कॉमन है कि जैसे समंदर है, समंदर में पानी है, हाँ। वो पानी की तरंगे उठती है, लहरें उठती हैं, और कभी सुनामी भी होता है। हाँ। जितनी लहर उठती है उतनी लहर वापस पानी में समा जाती है, मगर तो लहर का उद्भव होता है, लहर का समावेश हो जाता है। उसको जन्म मृत्यु बोलो, कुछ भी बोलो। तो जब तक लहर चलेगी, मानो कि वो अरेबियन समुद्र से एक लहर उठी, मे बी इवन फ्रॉम द सदर्न हेमिस्फीयर। हाँ, मान लो आप साउथ अफ्रीका से लहर उठी, वो दरिया में घूमती घूमती आके बंबई के किनारे पर वो टूट गई, ठीक है? तो बहुत लंबी सफर की। और कुछ लहरें ऐसी होंगी जो 10 किलोमीटर के आगे शुरू हुई, इधर आके टकरा के खत्म हो गई। मगर जो भी उभरती है और समा जाती है, जो जन्म होता है, मरण होता है, वो खाली लहर का होता है। वो लहर के अंदर जो पानी है उसका कभी मृत्यु नहीं होता है। और जो पूरा समंदर है, अगर हम समंदर को ब्रह्मांड बोले और पानी को हम अपना पूरा संसार बोले, संसार भी नहीं, वो आत्मा बोलो, जो भी बोले, तो न पानी का मृत्यु होता है, न समंदर का मृत्यु होता है। लहरें उठती है, लहरें समा जाती है। ये एक स्टेटमेंट हुआ।
अच्छा, संसार में जो भी चीज हम अनुभव करते हैं वो हर एक चीज जाने वाली है। आप चाहो या ना चाहो, तो अगर आपको जिसको अपने पति पत्नी माँ बाप बच्चों से प्रेम है वो भी छूटने ही वाला है। ये संसार की रचना है, ठीक है। ये शरीर भी छूटेगा, गाड़ी बंगला धन वैभव सब छूटेगा, जो भी आपका अनुभव है वो सब अनुभव छूटेगा। बड़े बड़े आश्रम है या बड़े बड़े मंदिर है, वो मंदिर में मठाधीश है या पुजारी है, वो कुछ मठाधीश ऐसे समझते हैं जैसे ये मठ मेरी प्रॉपर्टी है, वो भी उनसे छूट जाएगा। सब कुछ छूटेगा। अमेरिका का प्रेसिडेंट भी मर जाएगा तो उसकी प्रेसिडेंसी भी गई, जो भी था सब कुछ गया। ये सब जाने वाला है, ये संसार की रचना है। अच्छा, अभी जो वेदांत के हिसाब से आत्मा तो एक ही है, आत्मा अनंत नहीं है, बहुत सारे नहीं है, जीवात्मा बहुत है। एक ही आत्मा अनेक रूप धारण करके, अनेक जीवात्मा बन के, अनेक शरीर धारण करके इस संसार का अनुभव ले रहा है, ठीक है। तो वेदांत के हिसाब से और CWG के हिसाब से, पर यहाँ कुछ मित्र शायद नए हैं तो उनको ये पता नहीं होगा मैं CWG मतलब क्या बोल रहा हूँ। तो जो भी नए मित्र है उसके लिए मैं 1-2 मिनट बोल देता हूँ। ये फिलोसॉफी स्टडी सर्कल तो हम कुछ साल से चला रहे हैं और यहाँ हमने वेदांत मतलब कि उपनिषद का अभ्यास किया हुआ है और कन्वर्सेशन विद गॉड की पुस्तक का अभ्यास किया है। कन्वर्सेशन विद गॉड को हम शॉर्ट में CWG कहते हैं और उसकी प्रोफेसर मतलब ऑथर जो है नील डोनाल्ड वॉल्स, उन्होंने करीब 10 जितनी पुस्तकें लिखी है। पहली पुस्तक ही बहुत अच्छी है और उसके बाद में हर एक पुस्तक एक के बाद एक नए लेवल पर जाती है। और शायद हमें ये अच्छा नहीं लगता है कहने का कि CWG वेदांत से भी आगे है, क्योंकि हम अपने इंडियन फिलोसॉफी को फाइनल मानते हैं। मगर आचार्य विनोबा जी ने कहा था कि ज्ञान तो अनंत है और ज्ञान के बारे में ये सोचना कि कोई भी सब्जेक्ट कोई भी समय पर उसका अंत आ गया तो वो गलत है। ज्ञान में तो आगे प्रगति होती ही रहेगी। तो मैंने जो मेरी नोट्स भेजी है पिछले 2 दिन में वो बताया है कि कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब वेदांत नहीं देता है, मगर कन्वर्सेशन विद गॉड उसके भी जवाब दिए हुए हैं। तो अच्छा, ये जरा ब्रीफ कह के फिर मैं अभी वापस आगे इसके बारे में बात करता हूँ। जो सवाल है कि मेरे सगे संबंधी चले गए, उसका मुझे दुख है, उसके लिए क्या करूं। ओके, तो जितने भी हिंदू ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, ये 2 ही धर्म का मैंने ज्यादा अभ्यास किया, दूसरे धर्मों का मुझे पता नहीं है। और बाकी मेरे ख्याल से वेदांत और CWG वो कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी पे है, क्योंकि दोनों में कोई एक ईश्वर का नाम ही नहीं है। ईश्वर का नाम लेके हम कहे कि मैं महावीर को मानता हूँ या मैं कृष्ण को मानता हूँ तो हमारा एक डिवीजन हो जाता है, फिर हम धार्मिक बात पर आ जाते हैं। मगर जो स्पिरिचुअलिटी है वो पूरे संसार को एप्लीकेबल है। आप कोई भी देश में हो, कोई भी धर्म को मानते हो तो सभी को एप्लीकेबल। तो वेदांत और कन्वर्सेशन विद गॉड दोनों का ये कहना का है। अभी हमारी कन्वीनियंस के लिए हम अलग अलग शब्द यूज करते हैं कि एक परमात्मा है, वो एक परमात्मा अनंत रूप धारण करते हैं और वो अनंत रूपों से अनंत शरीर धारण करते हैं और वो अनंत शरीरों से अनुभव लेते हैं। अगर एक पति और पत्नी दोनों का अगर समझो मृत्यु हो गया तो क्या हुआ, वो दोनों लहरें समान समंदर में समा गई। ऐसा नहीं है कि उसमें से किसी का भी नाश हो गया, दोनों है, दोनों थे। जैसे गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कोई भी समय ऐसा नहीं था जब तू नहीं, मैं नहीं था, या तो ये सभी राजा लोग थे। हम आज भी है और हमेशा रहेंगे, तो इसमें किसी की मृत्यु तो होती ही नहीं है।
आत्मा तो रहता ही है, और आत्मा लेवल पर CW जी बहुत रिपीटेडली कहते हैं कि आप जिसको चाहते हैं उसको मिलेंगे मृत्यु के बाद। और कुछ लोग जो एकदम सेंसिटिव है, वो कहते हैं कि आप अभी अपने पिताजी का ध्यान करो। मैं कृष्ण कुमार जी से कहता हूं कि समझो उनके पिताजी अभी अभी थोड़े समय के पहले देहांत हो गया। तो देहांत शब्द का डेफिनेशन भी यह है, व्याख्या है, देह का अंत हुआ, आत्मा का तो अंत हुआ ही नहीं है। एक दूसरा, यहाँ अभी वेदांत जो समझता है वो क्वांटम फिजिक्स समझ सकता है कि कृष्ण कुमार जी की जीव अभी हमारे सामने शरीर के साथ में है, हमारे साथ में संवाद करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण कुमार जी की आत्मा यहाँ आके सिमट गई। वो आत्मा तो परमात्मा क्षेत्र में है ही। जैसे पानी में जो एक लहर खड़ी हुई, तो लहर के अंदर तो पानी तो है ही। अगर हमने उसको लहर का नाम दिया तो उसका मतलब नहीं कि पानी मिट गया। पानी भी है, समंदर भी है, लहर भी है। लहर जब समा जाती है तभी भी पानी भी रहता है, समंदर भी रहता है। तो हमारे दृश्य में अभी पति पत्नी नहीं आते हैं या संतान पिताजी नहीं आते हैं, मगर पानी की तरह या तो आत्मा की तरह तो वो अभी भी हाजिर है। और वो आत्मा की तरह एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, प्रेम करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो कन्वर्सेशन विद गॉड में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, और मैंने जो दूसरे पुस्तक पढ़े हैं जो कहते हैं कि मृत्यु के बाद का क्या। तो मृत्यु शब्द यहाँ हमें एक शब्द का 2-3 अर्थ ले सकते हैं, मगर मृत्यु शब्द को इस तरह से समझो कि एक इंटरवल पड़ गया। अभी हमने ये एक संसार का ड्रामा है, संसार का थिएटर है, उसमें हम लोग एक सीन करने को आए हैं, ठीक है। बीच में इंटरवल पड़ा, हम पर्दे के पीछे चले गए। तो वो एक इंटरवल की तरफ से देखो तो कन्वर्सेशन विद गॉड कहते हैं कि आप जिस जिस को चाहते हैं उसको जब भी आप पर्दे के पीछे जाओगे सब आपके सामने हाजिर होंगे, वो सब आपको मिलेंगे, और फिर आप उनके साथ में आगे बढ़ोगे, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते ही रहो। तो संसार में हमारे प्रियजन का दिखना, अनुभव होना बंद हो जाता है तो हमें दुख तो होता ही है। और कोई भी आदमी ये कहे कि नहीं मैम मुझे दुख नहीं होता है, तो उसका मतलब कि या तो रियल साधु की कक्षा में पहुंच गया है, और या तो वो झूठ बोल रहा है। हम लोग सब गृहस्थ हैं, हम सबको दुख तो होगा ही, मगर समझने की बात यह है कि मेरी आत्मा, मेरे प्रियजनों की आत्मा, सभी आत्मा अभी परमात्मा क्षेत्र में है। वो आत्माएं अपना अपना जो भी काम करना है, भले वो तो समाधि होगी, जो भी करना है वो करती है अभी भी। खाली एक लहर का रूप बंद हो गया, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं हुआ, न कोई नुकसान हुआ है, न कुछ नष्ट हुआ है। धर्मेंद्र भाई, does it appeal to you? Dharmen bhai, you are still muted. Yeah. हाँ, No, एक वस्तु जो है किसी के भाई आफ्टर द डेथ हाँ, the soul of that person is in a much better state of yes, existence than it is yes, when it is alive. correct. That gives lot of consolation. हाँ, કે ભાઈ જે આપણા loved ones ultimately જશે તો they will be in a better position as compared to what they are when they are alive here with us. correct. So I think it gives some comfort to that extent. Yeah, so actually CWG explains in details that at Atma level, say we use here the word Chaitanya, he uses energy, but Chaitanya is a better word. So Chaitanya is omnipotent, omniscient, omnipresent. Okay. When that Chaitanya is moving at infinite speed, probably at a speed higher than 3 lakh kilometers per second, which is the speed of electricity. Okay. Now that energy slows down.
that energy which is सूक्ष्माति सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो एक ठोस स्वरूप धारण करती है, तभी ये संसार होता है, ये व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति का शरीर होता है। ओके, हमें शरीर के रूप में बहुत सारे बंधन है, ये सब बंधन जीवात्मा को है। जब जीवात्मा शरीर छोड़ देगा तो वो जीव ना रह के आत्मा बन जाता है, आत्मा को कोई बंधन नहीं। और मैंने जो चैप्टर भेजा है CWG 3, उसका 3rd चैप्टर में ये हफ्ते में ही भेजा हुआ है ईमेल करके, उसमें क्लियरली समझाते हैं कि जब आप आत्मा हो गए तो हर एक चीज आप जो भी इच्छा करो वो इंस्टेंटेनियसली आपके सामने है। ओके, अभी मान लो कि धर्मेंद्र भाई के पिताजी जो मेरे लिए गुरु के समान थे, अभी संसार में हाजिर नहीं है। ओके, मगर वो पिताजी ने आत्मा स्वरूप में कुछ भी इच्छा की, वो इच्छा उनकी वही समय पे रियलाइज हो जाएगी। जीवात्मा है तो जीवात्मा, अभी मैं इच्छा करूं कि भाई मुझे एक बड़ी अच्छी गाड़ी लेनी है, तो पहले तो मुझे पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा, फिर ऑर्डर देना पड़ेगा, फिर गाड़ी मिलेगी। तो मेरी इच्छा और वो इच्छा की पूर्ति होना, उसके बीच में समय लगता है। आत्मा लेवल में बिल्कुल समय ही नहीं लगता। अगर मैं यहाँ बैठे बैठे सोचूं कि मेरा बेटा कैलिफोर्निया में है, मुझे जाके उसको मिलना है, तो आत्मा स्वरूप में वो आत्मा इंस्टेंटेनियसली अपने प्रियजन के पास पहुंच जाएगा। तो जो धर्मेंद्र भाई ने कहा कि ये मेरे प्रियजन का लॉस होना, वो आत्मा लेवल में लॉस नहीं होने वाला, बिल्कुल लॉस नहीं होने वाला। संसार की दृष्टि में यस, बहुत कुछ चीजें छूटेगी और यही संसार की रचना है। I think Atul Bhai has raised his hand since quite some या time. प्लीज अतुल भाई। सर एक मतलब ये फिजिकल लेवल का पर्सपेक्टिव एक देता हूँ हाँ। डिफरेंट, जो मैंने मेरे अर्लियर इयर्स में रियलाइज किया कि सर थोड़ा मतलब ज्यादा दुख हमें इसलिए भी होता है कि काफी बार हम अपना रिलेशन बैलेंस नहीं कर पाते हैं वो लव्ड वन के साथ में। करेक्ट। जैसे सपोज मम्मी बीमार है और अगर हम उसका ठीक से ध्यान रख पाते हैं तो भी हमें वो फियर ऑफ लूजिंग हर कम होता है, बिकॉज व्हेन यू आर इन प्रेजेंट एंड यू बैलेंस योर टाइम विथ योर लव्ड वंस, देन ऑल्सो यू गेट आउट ऑफ फियर। इट इज लाइक अ चाइल्ड आस्किंग फॉर कैंडी, यू नो, वो जैसे झगड़ा करता है तो थोड़े दिन वो कैंडी लेता है तो अल्टीमेटली उसका कैंडी का क्रेविंग गोज डाउन बेसिकली, एंड जितना टाइम हम उसको दूर रखते हैं वो परसिस्ट होता है काफी। सो एक ऐसा भी मेरा पर्सपेक्टिव था और ये मैं मतलब इस फेज से गुजरा हूँ जब मैं ठीक से वक्त बिताने लगा बीइंग इन प्रेजेंट विद देम, then automatically that fear fades away। तो ये एक अलग सा पर्सपेक्टिव था, I just wanted to share। बराबर, ऐसे बहुत सारे पर्सपेक्टिव रहेंगे क्योंकि ये विषय ऐसा है, ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इसमें बहुत सारे सोच विचार रहेंगे ही। રસુનભાઈ, हाँ जी, हाँ जयंत भाई। એક ક્વેશ્ચન છે, જેવી રીતે કે હ્યુમન કાઇન્ડ નું પોપ્યુલેશન વધે છે, બરાબર, that is the fact also. So at the same time, is there any increase noticed in animals, પશુ પક્ષી એ જાતિમાં બી વધે છે કે નહીં? question. See, this question comes from a perspective. Yeah. Okay, and our perspective is, if I can say, either white or black. It is this or that. Actually, as per Vedant, परमात्मा तो अनंत है और परमात्मा जितने विचार करते जाएंगे उतने जीव उत्पन्न होते जाएंगे, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है। CWG वॉल्यूम 1 में ही ईश्वर कहते हैं
कि भाई मेरा काम क्या है, तो मैं अनंत जीवों को उत्पन्न करते रहता हूँ और फिर वो हर एक जीव स्वतंत्र है, उनको जो करना है वो करते रहते हैं। तो एक्चुअली तो ह्यूमन बीइंग्स का पॉपुलेशन क्या है, 8 बिलियन। हाँ, एक मक्खी का पॉपुलेशन ट्रिलियंस में होगा, बैक्टीरिया का पॉपुलेशन ट्रिलियन Yes. मल्टीप्लाइड बाय ट्रिलियंस होगा, ठीक है। Yes, और right. जब एक जीव दूसरे जीव में रूपांतरित होता है, मतलब दूसरा शरीर धारण करता है, तो एक बैक्टीरिया तो शायद अभी मेरे शरीर में जो होंगे वो बिलियन, 8 बिलियन से ज्यादा होंगे, और वो हर एक बिलियन की पोटेंशियल है, सॉरी हर एक बैक्टीरिया की पोटेंशियल है कि वो इंसान बन सके, या तो वो टाइगर बन सके या तो एलिफेंट बन सके, क्योंकि एक जीव तो है, जीव तो हर एक में समान ही है। आज की तारीख में वो बैक्टीरिया के जीव में है, कल को वो एलिफेंट हो सकता है। तो ये नंबर ऑफ पॉपुलेशन इज ए figure which we should not be concerned about. It is a variable figure. It can vary as the situation changes. See, actually that means કે see ultimate એક solace લેવા માટે કહીએ છે ને કે જ્યારે એ આત્માનું ઓલવેઝ નેક્સ્ટ બર્થમાં પોઝિટિવ જ પ્રોગ્રેસ છે, એ સોલેસ કન્સોલેશન લઈએ છે ને, ધેટ ઇઝ રોંગ. એ રોંગ એપ્રોચ છે, રોંગ બિલીફ થાય ત્યારે. સી એક શું કહીએ કે આપણે માનીને જ ચાલી જાય કે સારું જ થવાનું છે, બરાબર છે, પણ who knows that? કારણ કે પશુ પક્ષીને એની સંખ્યા અબજો, બિલિયન્સ, ટ્રિલિયન્સમાં છે. એટલે મનુષ્ય ભવમાંથી બી પશુ પક્ષી, એટલે જે જૈનિઝમ પ્રમાણે 4 ગતિ કીધી છે. તિર્યંચ ગતિ જે પશુ પક્ષીની છે, પછી દેવગતિ, નરક ગતિ અને એક મનુષ્ય ગતિ. તો આ ચારેયમાં ઇન્ટરનલ થતા રહેવાનું ને. ચારેયમાં જે આગળ કનુભાઈએ કીધું કે દેવગતિમાંથી અલ્ટિમેટલી મનુષ્ય ગતિમાંથી આવીને જ મોક્ષ થશે. એટલે મનુષ્ય ગતિ સિવાય ત્રણેયનું એટલું ઇમ્પોર્ટન્સ નથી, એટલે એ બધી ડિગ્રેડેડ છે એ ગતિઓ. એટલે ઓલવેઝ એમ માનવું જરૂરી નથી કે આપણે કે ઓલવેઝ મારો બેટર ગ્રોથ જ થશે, મનુષ્યથી મનુષ્યમાં જ આવશે. એટલે આપણે એમ સોલેસ લઈને બેસીએ કે મારા લોડ વન્સ બધા મનુષ્ય ગતિમાં જ પાછા આવ્યા છે, એવું જરૂરી નથી. એક ખોટો ભ્રમ છે, એક કન્સોલેશન માટે ઠીક છે, ધેટ ઇઝ એ બીકોઝ વી હેવ ટુ બિલીવ, કીપ બિલીવિંગ. અને બીજો એક આજે કનુભાઈએ બી ક્વેશ્ચન કીધો હતો ને, જે કે બીજો બર્થ થાય ત્યાં એકચ્યુઅલી જૈનિઝમ પ્રમાણે ઇટ ઇઝ જસ્ટ ઇન એક વન આઈ બ્લિંક કરે ને ત્યાં સુધીમાં નેક્સ્ટ બર્થ થઈ જાય છે, એવું જૈનિઝમ બિલીવ કરે છે. એટલું એક છે. जैन भाई, યા आपने जो कहा वो जैन धर्म की मान्यता है। हिंदू धर्म की मान्यता भी पुनर्जन्म के लिए करीब करीब समांतर है। वेदांत और CWG की मान्यता कंप्लीटली अलग है। ओके, तो मैं आपके विचार को गलत नहीं कहता हूं, मगर ये मैं जरूर कहता हूं कि वेदांत के हिसाब से, कन्वर्सेशन विद गॉड के हिसाब से, जो भी होगा अच्छा होगा, और जो भी होगा आपने चाहा वही होगा। कर्म का सिद्धांत जो है वो, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है, कि आप जब तक खेल खेलना चाहो तब तक खेल के रूल्स आपको एप्लीकेबल है। आप जब तक नाटक में एक्टर बन के नाटक करना चाहो तब तक नाटक के जो रूल्स है उसके हिसाब से आप करोगे। समझो आप ड्रामा कर रहे हो, वो ड्रामा में आप राजा हैं और मैं आपका सिपाही हूं। आत्मा के हिसाब से हम दोनों समान हैं, मगर नाटक में मैं सिपाही रहूंगा, मैं खड़ा रहूंगा, आप सिंहासन पर बैठोगे, तो वो जो रूल है उसके हिसाब से चलेंगे। जैसे ही देहांत हो गया, मतलब जैसे ही आत्मा ने देह को छोड़ दिया, तो सभी आत्मा समान है। वो मक्खी का आत्मा है, हाथी का आत्मा है, रसिया के प्रेसिडेंट का आत्मा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का आत्मा है, सभी आत्मा एब्सोल्युटली समान है, और वो आत्मा जो चाहेगा वही होगा। अगर आप, ये चैप्टर भी मैंने खास भेजा था, 3rd चैप्टर ऑफ CWG 3, वो अगर आप पढ़ेंगे, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़ा लंबा चैप्टर है, शायद 40-50 पन्ने का है, मगर वो डेथ के ऊपर ही है
और नील डोनाल्ड वॉल्स पूछता है कि मेरे डेथ के बाद में मेरा क्या होगा। ईश्वर उसको पूछते हैं तेरी इच्छा क्या है। तो नील एकदम सरप्राइज होता है, क्या मेरी इच्छा से होगा? ईश्वर ने कहा बिल्कुल तेरी इच्छा से होगा, तू जो चाहेगा वही होगा। और ये नील डोनाल्ड वॉल्स की 10 पुस्तक में क्लियर हो जाता है कि हमें जो भी होता है हमारी इच्छा से होता है। मगर ये वेदांत का इतना हाई लेवल प्रिंसिपल है कि 8 अरब की पब्लिक में मुझे लगता नहीं है कि 99% पीपल उसको समझ भी सके या उसका स्वीकार भी कर सके। तो ये मेरा कहना है, आप खराब मत मानो, मगर सामान्य लोगों की समझ में आ सके इसके लिए कर्म का सिद्धांत है, ड्रामा के रूल्स है, गेम के रूल्स है। आप गेम को छोड़, हाँ, जब तक आप धार्मिक बात करते रहोगे तब तक ये मानोगे कि भाई डरो, कर्म के सिद्धांत से डरो, नहीं डरोगे तो कल को आपको सजा होगी। वेदांत ये कहता है कि आपको किसी को जरा भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद परमात्मा हो। So that is a difference of opinion, Jayant bhai. Yeah, right, correct. तो अगर आप एक चीज ऐड करूंगा सर, जो आपने बताया ना सर, जो फार्मूला हम जैसे कोई सवाल गलत पूछा जाता है ना तो फिर उसके आंसर भी गलत ही होते हैं एक्चुअली। जैसे ये कहा जाता है कि हम 8 बिलियन है एंड लेट अस अज्यूम फॉर ए मोमेंट कि 16 बिलियन बाकी लोग हैं, चाहे उसमें बैक्टीरिया है, एनिमल्स है, लेट्स अज्यूम फॉर ए मोमेंट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। तो मीन्स हम टोटल जो है 24 बिलियन लोग हुए इसके अंदर, इसमें मतलब कोई बैक्टीरियाज भी आ गए, हम भी आ गए। सो ये एक प्रिजम्पशन है सर, ये एक तरीके से जब हम आत्मा की सोल की बात करते हैं कि वो इनफाइनाइट है और हम उस प्रभु का, गॉड का, एनर्जी का, कॉन्शियसनेस का एक छोटा सा अंश है और वो इनफाइनाइट है, और उस इनफाइनाइट का एक छोटा सा व्यक्त रूप में आप, मैं और बाकी 16 बिलियन लोग हैं, चाहे वो उसमें एनिमल किंगडम है, चाहे बैक्टीरिया किंगडम है, चाहे वो ह्यूमन किंगडम है उसके अंदर। सो दिस इज मियरली ए हाइपोथेसिस, दिस मियरली मतलब एक समझाने के लिए प्रोफेसर जैसे समझाता है उस वाली चीज है। दिस इज नॉट ट्रू कि भी हम आज तक ह्यूमन किंगडम थे, अब हम एनिमल किंगडम में चले गए, एनिमल से निकल के बर्ड्स में चले गए, बर्ड्स से बैक्टीरिया में चले गए। इट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट एट ऑल ट्रू। हम इतने बड़े अनंत का हिस्सा है और उस अनंत में हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जैसे आप वो सागर का एग्जांपल इतना ब्यूटीफुली देते हैं, मैंने आपका वो आर्टिकल भी पढ़ा जो लास्ट 3 दिन में, एंड मेरे सभी दोस्तों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो सहेज के संजो के रखने जैसा है, और रोज जैसे हनुमान चालीसे का पाठ करते हैं वैसे रोज भी नहीं तो महीने में एक आध बार उसको जरूर पढ़ने का। जो ये सागर वाला, वेव वाला, लहर वाला जो एग्जाम्पल है, उससे पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है उससे सर उसके बाद में। मतलब बराबर है सर, एक बार एक सेकंड के लिए सोच के, खाली एकदम फ्रेश माइंड से सोच के देखिए कि मैं उस ओशियन का एक बूंद हूँ, मुश्किल से एक ओशियन की ड्रॉप हूँ उसके अंदर। करेक्ट। तो पूरा ईगो जो है ना सर, जिससे वजन लेके घूम रहे हैं, ये पूरा एक सेकंड में खत्म हो जाता है सर उसके अंदर बात। सही बात है। जस्ट ए टाइनी ड्रॉप, एंड टाइनी ड्रॉप भी कोई घर की बकेट के अंदर जो पानी है उसकी नहीं, ओशियन। और वो ओशियन अनंत है, अनंत और वो सागर ओशियन तो हमने देखा ही नहीं, अंदाज ही देखा, पता नहीं कहाँ तक है, कितना है, कितनी क्या है। तो अब उसमें ये जो कैलकुलेशन बिठा के समझना है ना, वो हमारा एक फाइनाइट माइंड है, हम फाइनाइट है, हमारी सोच फाइनाइट है, तो उस फाइनाइट में हम इनफाइनाइट को कैसे महसूस करें सर उसको। बराबर है, एकदम ऐसा मुझे लगता है सर उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। ओके, सो नहीं, एक धार्मिक विचार और स्पिरिचुअल विचार दोनों में अंतर रहेगा ही, और वो अंतर समझ के हमें चलना है। हम ये नहीं बोल सकते कि एक धार्मिक विचार गलत है या दूसरा धार्मिक विचार गलत है, क्योंकि हकीकत में ये अनेकांतवाद है, और जो प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं वो ऐसे प्रिंसिपल है कि उसके ऊपर बहुत सारे विचार हो सकते हैं। कौन सा विचार सही, आपको जो सही लगा वो आपके लिए सही, दूसरे को जो सही लगा वो उसके लिए सही। अच्छा, और कोई कमेंट, एनी क्वेरी? जो लास्ट मेल आपकी थी ना, उस हाँ दिन जी। एकदम जैसे वो बोलते हैं ना, जैसे कोई साइंटिस्ट रहता है और वो कोई फार्मूला ढूंढता है और अचानक उसको मिल जाता है, तो वो जैसे जो उसको थ्रिल आती है, खुशी आती है, ऐसा मैंने आपकी मेल में महसूस किया। तो वो थ्रिल हमें जाननी है सर। चलो, तो बस मैं वो उसी पर आता हूँ, क्योंकि सही माने में
आपने जैसे कहा ना वो यूरेका जैसा हो गया हाँ कल। हाँ, यूरेका वो वर्ड बोलना नहीं आया मुझे, वो यूरेका मोमेंट्स, यस। वो क्योंकि मैं ये सब सोच रहा था कि ये अगर आप गीता पढ़ो, और उसके ऊपर मैं जाऊं उसके पहले मैं एक बार खास कह देता हूं कि मेरे मित्र गिरधारी लाल दागा ने मुझे ये पुस्तक भेंट दी है, श्रीमद् भगवत गीता कमेंट्री बाय स्वामी श्री राम सुखदास जी। तो मेरे पास तो कम से कम 10 कमेंट्री है, उसमें राम सुखदास जी की कमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत सुंदर कमेंट्री है। इसको ये फिलोसॉफी का ज्यादा डेप्थ में अभ्यास करना है तो स्वामी राम सुखदास जी की बुक गीता प्रेस में अवेलेबल है, हिंदी में भी है, गुजराती में भी है, तो आपको जो अच्छी लगे वो लीजिए जरूर। और मुझे कल सुबह जो आनंद हुआ था वो ये गीता की कमेंट्री पढ़ते पढ़ते ही हुआ था, और उसके बाद में मैंने जो नोट बनाई वो मैंने आपको ईमेल किया है। उसके ऊपर टाइटल लिखा है फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डेथ। तो अभी अगर मुझे एक नेक्स्ट हाफ एन आवर दीजिए हाँ। तो उसमें मैंने पूरा निश्चय और व्यवहार, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, संसार में कैसे रहने का, और संसार के बाद में क्या होता है, ये सब कुछ मैंने साथ में एकदम क्विकली फटाफट फटाफट जैसे मेरे दिमाग में आते गया कि ये धार्मिक विचार है, ये गीता के भक्ति प्रधान विचार है, ये वेदांत है जो वेदांत सिर्फ ज्ञान की बात करते, वेदांत में भक्ति की कोई बात ही नहीं है। और वेदांती समय में शायद आप लोगों को पता होगा मंदिर वगैरह बनाते भी नहीं थे, वो मंदिर बनाने का भक्ति मार्ग वगैरह करीब 2000 साल के अंदर ही हुआ है। 2000 साल के पहले भारत में मंदिर बनाने की ट्रेडिशन नहीं थी। ओके, राम भगवान किसी मंदिर में नहीं जाते थे, कोई मंदिर में जाके दर्शन करने का ऐसी कहीं भी रामायण में स्टोरी नहीं आती है, न महाभारत में आती है, वो समय पे मंदिर का सवाल ही नहीं था। तो भक्ति मार्ग है, आज की तारीख में भक्ति मार्ग ज्यादा पॉपुलर है। वेदांती समय में सिर्फ ज्ञान मार्ग था, आज की तारीख में मतलब गीता में जो उपदेश दिया है कर्म मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, ज्ञान मार्ग भी है, और अगर तीनों का संयोजन कर सके तो और ज्यादा स्पीड से बढ़ सकते हैं। एनीवे, सो श्री राम सुखदास जी की भक्ति मार्ग पर उन्होंने लिखी हुई गीता की कमेंट्री है, आपको अच्छी लगे तो जरूर पढ़िए। और गीता प्रेस में जैसे आपको पता है वो पुस्तक का वजन करेंगे तो पेपर की जो कॉस्ट होती है उससे आधी कॉस्ट में बुक्स बिकती है, मतलब जो कमर्शियल भाव में देखो तो 2000 में होनी चाहिए, यहाँ 150 रुपये में देते हैं बेचारे, तो कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं है। ओके सर, ये रामसुखदास जी महाराज से मैं 2 बार मिला हूँ सर, इनसे। अरे वाह, अरे वाह, ओके ओके। तो मुश्किल यू से आर 40-42 किलो वजन होगा, एकदम हल्के दुबले पतले, एंड हाँ, शरीर पे मिनिमम कपड़े पहनते थे, और इतने पूज्य थे कि लोग मतलब आप यूं समझो हजारों लाखों लोग तरसते थे उनसे मिलने के लिए। बराबर, बहुत छोटी छोटी बातें बोलते थे गृहस्थ जीवन में जीने के लिए, कि आप कैसे अपना जीवन सार्थक बना सकते हैं। हाँ एक हाँ बार राजस्थान में मिला था, एक बार मुंबई आए थे तो बिरला मातुश्री में इनका एक हाँ, प्रोग्राम था, वहां मिला। वाह पर वाह, परले परले दर्जे के संत थे, कोई लाग लपट नहीं था, और अपने चेले चपाटी को बोला कि जैसे ही मैं इस देह को छोड़ दूं तो किसी का इंतजार मत करना, जहां हूं वहीं पे अगले कुछ मिनटों में ही पूरा काम तमाम कर देना, मतलब मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, और न मेरा कोई मंदिर बनाना, न कोई समाधि बनाना, वहां जो भी पानी नदी दरिया हो उसमें मेरी अस्थिया को भी प्रवाह कर देना, यानी इस देह का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब उनका। बराबर है एकदम, एंड बड़े ही, उच्च कक्षा के हैं हाँ, और उनके आप, डिसाइपल्स ने फॉलो किया, उनकी जो लास्ट विश थी उसको उस हिसाब से। बराबर। जस्ट प्लीज गो अहेड सर। और उन्होंने ये भी लिखा है अपना, क्या बोलते हैं, रामचरितमानस, सॉरी रामचरितमानस तो तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, मगर उसी के ऊपर रामसुखदास जी का भी लिखा हुआ है, और वो भी बहुत अद्भुत है। हाँ, उसमें एक जो प्रसंग आता है कि राम भगवान के विवाह के बाद में परशुराम जी क्रोध करके उनसे युद्ध करने को आते हैं, तो उसमें जो संवाद दिया हुआ है तो वो राम सुखदास जी ही लिख सकते हैं, इतना सुंदर संवाद है। और ये गीता की कमेंट्री आप पढ़ोगे तो पता चलेगा कि उनका नॉलेज गीता से 1000 ज्यादा गुना है।
उन्होंने सब वेद वेदांत पुराण सब पढ़ रखा है, और वेद गीता तो उनको जैसे सब पूरी गीता मुंह जबानी याद है, तो उसका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो देते हैं ना, तो अपने बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट डिसअपियर हो जाते हैं। तो गीता ऑल्सो आई वुड से, उसमें जो खाली कृष्ण भक्ति का जो प्राधान्य है, उसके जगह पे आप महावीर भगवान का नाम लिख दो, बुद्ध भगवान का नाम लिख दो, किसी का भी लिख दो, तो सभी के लिए भक्ति मार्गी हो गए। और भक्ति मार्गी के सिवाय बाकी का जो भी लिखा है वो प्योर स्पिरिचुअल है। इट कैन बी रेड बाय ए मुस्लिम पर्सन, ए क्रिश्चियन पर्सन, एनीबॉडी। अच्छा, तो श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान सेकंड अध्याय में सांख्य योग समझाते हैं। पहले शुरू सांख्य योग से करते हैं, उसके बाद में चैप्टर, आधा चैप्टर के बाद में करीब कर्मयोग की बातें करते हैं। तो सांख्य योग में वो स्पष्ट कहते हैं, और ये जो है कि आप शरीर नहीं हो, वो अर्जुन को समझाते हैं, आप आत्मा हो। आत्मा को जीवात्मा कहते हैं जब वो शरीर के बंधन में, तभी वो जीवात्मा है। और भगवान जीवात्मा शब्द बहुत जगह पे यूज करते हैं। वो जीवात्मा को या तो आत्मा को शरीरी भी कहते हैं। शरीर और शरीरी, शरीर को धारण करने वाला जो है वो शरीरी है। उसको क्षेत्रज्ञ भी कहते हैं। शरीर क्षेत्र है, ये संसार बड़ा क्षेत्र है, वो क्षेत्र के अंदर रहने वाला क्षेत्रज्ञ है। बॉडी इज एवर चेंजिंग, मतलब कि मिथ्या है, असत्य है। जो मैंने 2 दिन पहले ही मिथ्या शब्द के ऊपर की नोट भेजी है, अगर आप याद रखोगे तो जो भी चीज एवर चेंजिंग है, एवर चेंजिंग क्या है? मेरा शरीर, आपका शरीर, मेरे और आपके रिलेशनशिप, मेरे कुटुंब के साथ, मेरे मित्रों के साथ, ऐसे आपके भी सभी लोगों के साथ के संबंध, वो भी एवर चेंजिंग है। वो इसके ऊपर आप जितना विचार करना चाहोगे, बहुत कुछ विचार कर सकते हो, मगर ये पूरा संसार परिवर्तनशील है। ये हमारे धर्म ग्रंथों में 2500 साल पहले भी लिखा है, और वेदांत में 5000 साल पहले भी लिखा हुआ है। आज के मैनेजमेंट थियरी वाले बोलते हैं कि चेंज इज परमानेंट, और उसके ऊपर ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स बना के वो लोग सोचते हैं कि ये सब हमारी अभी अभी की शोध है। ये अभी अभी की शोध नहीं है। चेंज इज परमानेंट, वो अपने फिलोसोफर्स ने हजारों साल पहले कह दिया है। जो इंसान चेंज की कंटिन्यूअस, संसार की कंटिन्यूअसली चेंजिंग परिस्थिति के साथ में समाधान नहीं करता है, वो दुखी होगा ही। कल मेरे पास 2000 रुपए की आमदनी थी, आज मेरे पास उससे ज्यादा आमदनी है। परसों ये भी हो सकता है कि मेरी इनकम कम भी हो जाएगी। किसी भी इंसान के पास आज एक्स अमाउंट की वेल्थ है, कल वाई अमाउंट होगा, परसों जेड हो जाएगा। लक्ष्मी भी चंचल है, संबंध भी चंचल है, इंसान का मन भी चंचल है। जो भी परिवर्तनशील है उसको मिथ्या कहा है। जिसका परिवर्तन नहीं होता है उसको सत्य कहा है। सत्य नहीं, सत्य कहा है। मिथ्या मतलब असत, असत मतलब असत्य नहीं। असत्य का हम जो ठोस मतलब निकालते हैं कि असत्य मतलब झूठ, नहीं, ऐसा झूठ तो कुछ भी नहीं है। संसार झूठ नहीं है, संसार भी सत्य है, मगर परिवर्तनशील है। ये जो स्टेटमेंट्स है गीता में, वो निश्चय नय के स्टेटमेंट है। आत्मा है, आत्मा अलग है, शरीर है, शरीर परिवर्तनशील है। ये हमें अभी यहाँ मैं CWG को लेके आता हूं कि आत्मा जो परमानेंट है, वो नए नए अनुभव करना चाहता है। इसके लिए वो नए नए शरीर धारण करता है, और उसके लिए गीता में कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जैसे एक इंसान अपने कपड़े बदलता है, ऐसे एक आत्मा अपना शरीर बदलता है। क्या तो अगेन एक रिक्वेस्ट भाई, जिसको भी क्वेरी आप कमेंट करना है वो अपना ऑडियो चालू रखे, उसके सिवाय ऑडियो बंद रखेंगे तो अच्छा है।
तो डिस्टरबेंस कम रहेगी। अच्छा, तो अभी जो मैं मेरी नोट के हिसाब से जा रहा हूं कि निश्चय नय में ये सब कुछ कहा, तो और तैत्तिरीय उपनिषद जो आगे हमने एक बार बातचीत की है, तैत्तिरीय उपनिषद ये कह रहा है कि हर एक आत्मा खुद आनंद स्वरूप है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि समझो धर्मेंद्र भाई की बात कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र भाई खुद आनंद स्वरूप है, वो ही आनंद है। और इसके लिए वेदांत में कहते हैं कि आत्मा जो है वो सत चित्त आनंद है। वो सत्य है मतलब परमानेंट है, चित्त मतलब नॉलेज है, और आनंद का अपने को पता है अर्थ। सत चित्त आनंद तीनों लक्षण आत्मा के हैं। तो वही आत्मा क्यों ये शरीर धारण करता है? क्या हम दुख झेलने के लिए शरीर धारण करते हैं? अर्जुन को बहुत कष्ट हो रहा था, वो उसके राजपाट छीन लिए गए थे, उसको युद्ध करना था। मगर युद्ध करेगा तो किसके साथ? अपने गुरु, अपने दादा, अपने पितराई, अपने कुटुंबी जनों से युद्ध करके उसको क्या मिलने वाला था? और उसने स्पष्ट कहा कि मुझे 3 लोक का राज्य मिले तो भी मुझे भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाने का पसंद नहीं है। तो ये जो है कि ये क्यों आपने कहा, एक आत्मा ऐसा क्यों करेगी? मेरे हिसाब से गीता में उसका जवाब नहीं दिया है, क्यों का जवाब नहीं दिया है। गीता में निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों के श्लोक एक ही चैप्टर में साथ में मिलते हैं, मगर वहां डिस्टिंक्शन नहीं किया है कि ये निश्चय की बात है, ये व्यवहार की बात है, क्योंकि दोनों बातें ऑपोजिट्स लगती है। तो अपने को बड़े संशय होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। CWG समझा रहा है, जो मैंने यहाँ आगे अपने एक किंग एंड बेगर की वार्ता से बात की थी। खाली 2-3 सेंटेंस में कहूं तो किंग के पास इतना ऐश्वर्य है, इतनी सत्ता है, इतना धन वैभव है कि उसको किसी चीज की कीमत ही नहीं है। तो वो अपनी सत्ता का, अपना ऐश्वर्य का, अपनी जाहोजलाली का अनुभव करने के लिए कुछ दिन के लिए एक भिखारी का वेश लेके बाहर जाता है। और जब भिखारी का वेश लेके जाता है तब वो खुद दवाई लेके भूल जाता है कि मैं राजा था। फिर वो भिखारी होके भीख मांग रहा है, उसको कभी भीख मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी 2 दिन भूखा सोना पड़ता है। तभी वो जब भिखारी मतलब हम लोग सब भिखारी है, मतलब ये वार्ता के हिसाब से हमारे सब के कंस्ट्रेंट्स है, हमारे सब के लिमिटेशंस है। जब हम अपना ये भ्रम, ये अपनी माया जाल छोड़ देंगे तो हम वापस राजा स्वरूप में आ जाएंगे, हम ऐश्वर्यवान होंगे, ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंट, ओमनी प्रेजेंट हो जाएंगे, ये सब तकलीफें मिट जाएंगी। ये मतलब कि अर्जुन के आत्मा ने, दुर्योधन के आत्मा ने, धृतराष्ट्र के आत्मा ने, सभी के सभी आत्मा स्वरूप में परमानेंट आनंद में थे। वो परमानेंट आनंद की सही माने में, सही डेप्थ में अनुभूति करने के लिए उन्होंने एक नाटक रचा जिसमें दुर्योधन ने विलन का रोल किया, अर्जुन ने हीरो का रोल किया, और बाकी सब सारे उसके साथीदार बन के आ गए। फिर उन्होंने युद्ध का नाटक किया, फिर वो मरने का नाटक किया, मरना भी नाटक था। सब के सब परमात्मा बन जाते हैं मृत्यु के बाद। ये कहता है कन्वर्सेशन विद गॉड। कन्वर्सेशन विद गॉड के हिसाब से आपको कोई कर्म का सिद्धांत आत्मा स्वरूप में नहीं लागू पड़ता है। जीवात्मा स्वरूप में आप नाटक कर रहे हो तो नाटक के रूल से खेला करो। मगर ये निश्चय नय और व्यवहार नय दोनों के बीच का जो अंतर है वो हमें मगज में क्लियर रखना है। सो अर्जुन ने जब ये जीवात्मा का रूप धारण किया, क्षत्रिय राजा का रूप धारण किया, तो फिर उसका धर्म था कि वो सत्य के लिए लड़े। वो अधिकारी था राज का, तो उसको अधिकार मिलना ही चाहिए। किसी अपना अधिकार कोई छीन लेता है तो वो लड़ने का आपका कर्तव्य है। उस जगह पे अगर ब्राह्मण होता तो वो लड़ाई नहीं करता, क्योंकि ब्राह्मण लड़ाई नहीं करते, ये अपने एक हिंदू धर्म की व्यवस्था है। मगर क्षत्रिय का धर्म था, और यहाँ पर
कृष्ण भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। मतलब यहाँ धर्म का मतलब ये नहीं कि हिंदू मुसलमान, धर्म का मतलब आपकी फर्ज क्या है, आपकी जो फर्ज है वही आपका धर्म है। तो अर्जुन का धर्म था युद्ध करने के लिए, इसके लिए भगवान इतने सारे लेक्चर झाड़ते हैं कि भाई तू अपना मोह छोड़ और युद्ध कर। हम लोग सब गृहस्थ है यहाँ, जो भी हम समझो 18-19 लोग जो हैं, हम गृहस्थ है। गृहस्थ के लिए अपना अपना कर्तव्य करना बहुत जरूरी है। आप बोलो कि भाई नहीं नहीं मैं तो आत्मा स्वरूप हूँ, कल से मैं कुछ काम नहीं करूंगा, तो तुम भी भूखे मरोगे, फैमिली भी भूखे मरेगा। ये नहीं कर सकते, आपको आपका धर्म चलाना है। वो गृहस्थाश्रम चलाते चलाते आप कितनी भक्ति कर सकते हो, कितना ज्ञान कर सकते हो, कितना सत्संग करते हो, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोग जो दिन में 18 घंटा काम करते हैं, पैसा पैसा पैसा, उसके लिए कुछ भी करते रहते हैं, तो उनके लिए वो भी एक निश्चय ने में समझ लो कि उन्होंने भी वो नाटक कर रहे हैं। उनके भी मृत्यु के बाद सीधे आत्मा हो जाएंगे। और मैं एक बताऊं, हमारे में से बहुत सारे लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है। हमें पता है कि एक माइनर कैन नॉट बी पनिश्ड। ये तो बहुत सारे केस अभी तो न्यूज़पेपर में भी आ गए कि 18 साल से कम उम्र वाले लड़के को मैक्सिमम उसको वो कुछ चाइल्ड केयर सेंटर में रख सकते हैं, उसको सजा नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो विचार करने की उसमें क्षमता नहीं है। अभी वेदांत के हिसाब से हर एक जीवात्मा अज्ञानी है। हमारा खुद का ज्ञान बहुत लिमिटेड है। अभी हम कुछ सत्संग कर रहे हैं, कुछ हजार लोग ऐसे होंगे जो वेदांत पढ़ते होंगे, उसके सिवाय के लोग जो है उनका नॉलेज लिमिटेड है। अभी लिमिटेड नॉलेज में आप कुछ भी कर ले हो, उसकी सजा नहीं होती है, क्योंकि आप मूल स्वरूप से आत्मा हो। आप जब ये शरीर छोड़ दोगे तो आप अपना अनलिमिटेड इन्फिनाइट स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। फिर कौन आपको सजा कर सकता है? आत्मा को कौन सजा कर सकता है? भूल जाओ, ये सब डराने की बातें हैं। और वो कमर्शियल धर्म गुरुओं ने घुसा के रखी है अपने धर्म पुस्तकों में, क्योंकि कैरट एंड स्टिक, दैट इज द मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच। एक तरह से लोगों को नरक का भय दिखा के डराओ, दूसरी तरह से स्वर्ग का अट्रैक्शन बताओ, बेटा मेरे पास आ जा, मुझे दक्षिणा दे दे, तेरे को स्वर्ग मिल जाएगा। ये सब कैरट एंड स्टिक की बात भूल जाओ। आप हर एक लोग आत्मा हो, मूल स्वरूप से आत्मा हो। मान लो कि आपने ये जीवन में कुछ पाप किए हैं जो आपकी नजर से हीन है, भूल जाओ, आपने वो ड्रामा कर लिया, वो भूल जाओ। जब भी आपकी मृत्यु होगी आप सर्वशक्तिमान स्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा? तो कन्वर्सेशन विद गॉड स्पष्ट कहता है, आप जो चाहोगे वो होगा। आप जो इच्छा करोगे, आप चाहोगे मुझे फिर से इंसान का स्वरूप धारण करना है, आप इंसान का स्वरूप धारण करोगे। आप चाहोगे आपको दूसरे कोशी लोक में जाना है, क्योंकि ये पृथ्वी पर जीव हो तो एक ही चीज तो है नहीं, इतनी बड़ी दुनिया है जिसमें अनंत गैलेक्सी है, अनंत गैलेक्सी में अनंत स्टार, अनंत प्लेनेट्स है, बहुत सारे जीव है, बहुत सारे स्वरूप है। आप जो चाहोगे तभी आप पूर्ण ज्ञान के साथ, पूर्ण विचार शक्ति के साथ आप जो नक्की करोगे, ऐसा ही अनुभव आपको होगा। सो ये मैंने जो सेकंड क्वेरी की है उसका भी जवाब आ गया है। और आत्मा क्यों, या तो ब्रह्मन परमात्मा क्यों संसार धारण किया, उसका एक जवाब वेदांत में ये देते हैं, एकाकी न रमते। मतलब ब्रह्मन तो एक ही है, वो उसके दो स्वरूप है ही नहीं। जो भी है सब कुछ है, ब्रह्मन है, उसका एक दिमाग है, एक मन है, सब कुछ एक ही है। तो वो अकेले आनंद नहीं कर सकते हैं, इसके लिए ब्रह्मन ने सोचा एको अहम बहुश्यामी। तो बस वो उन्होंने सोचा और ये अनंत संसार खड़े हो गए। अभी अभी ये माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर में ओपनिंग स्क्रीन जो आता है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस बताते हैं। तो हम तो हमारी
मृत्यु की सोच रहे हैं। वहां एस्ट्रोनॉमी में बताते हैं पूरी की पूरी गैलेक्सी का भी देहांत होता है। अभी सोचो जरा, जो हमारी पृथ्वी वो सोलर सिस्टम में छोटी सी चीज है, पूरी सोलर सिस्टम नेब्यूला गैलेक्सी में इनसिग्निफिकेंट है। मतलब गैलेक्सी कितनी बड़ी चीज होती है, वो गैलेक्सी का भी अंत होता है। तो ये तो उद्भवना और विनाश होना या तो समा जाना, जन्म और मृत्यु, वो हर एक लेवल पर वायरस बैक्टीरिया से लेके एलिफेंट और गैलेक्सी तक सब चलते ही रहेगा। ये ब्रह्मन की रमत है। रमत बोलो, संसार एक नाटक बोलो, जो भी बोलो, उससे ज्यादा उसको महत्व मत दो। ये खाली इसके लिए है, निश्चय नए समझने के लिए। निश्चय नए समझे, टेंशन दूर हो गया, डर दूर हो गया, चिंताएं दूर हो गई। आपके हर एक स्वजन आपको मिलेंगे, कोई भी तरह की चिंता मत रखो। ये समझ के फिर व्यवहार में आ जाओ, अपना अपना काम शुरू कर दो। तो ये वेदांत का और कन्वर्सेशन विद गॉड दोनों का जवाब दिया। मैंने थर्ड क्वेरी ये लिखी है कि ये मेरा मृत्यु के बाद मेरी जीवन क्या होगा, मेरे वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अभी गीता में एक धार्मिक जवाब दिया है। तो ये मैं कहना चाहूंगा, किस मित्रों को अच्छा नहीं भी लगेगा, क्योंकि लोग गीता को फाइनल अथॉरिटी समझते हैं। मेरा सबमिशन ये है, आप चाहे मुझसे, जैसे जयंत भाई ने कहा उनके जैन हिसाब से विचार अलग है, ऐसे जो हिंदू धर्म में मानते हैं वो गीता को फाइनल अथॉरिटी मानते हैं। मगर मेरा सबमिशन ये है कि गीता इज ए हौच पौच, वो भेलपुरी है। उसमें निश्चय नय की बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं, धार्मिक बातें हैं, भक्ति प्रधान बातें हैं, सब कुछ है। तो उसमें गीता में कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि तेरी जैसी वासना होगी उसके हिसाब से तुझे जन्म मिलेगा। मतलब अगर मेरा जीव सतत है कि मैं मुझे इनकम टैक्स प्रैक्टिस से बहुत लगाव है, या तो मुझे धर्मपुर के जंगलों से बहुत लगाव है, तो मेरा नेक्स्ट बर्थ उसके मुताबिक होगा। मगर मेरा सबमिशन है कि मैं ये नहीं मानता, क्योंकि अभी मैं जीवात्मा हूं, मेरा नॉलेज लिमिटेड है। वो लिमिटेड नॉलेज से मैं क्या चॉइस कर सकने वाला हूं? जब मेरा देहांत होगा, मतलब मेरी आत्मा जब शरीर को छोड़ देगी, मेरी बुद्धि, मेरी विचार शक्ति, मेरा नॉलेज सब कुछ अनलिमिटेड हो जाएगा, तब मैं एक निश्चय से, मैं एक पूरी माहिती से नक्की करूंगा अभी मुझे आगे क्या अनुभव लेना है। मुझे लगेगा हाँ, ये जिंदगी जो मैंने जी है, जो अनुभव लिए हैं वो अच्छे हैं, मुझे इसका उसी को आगे ले जाना है, ठीक है, तो मैं आगे लेके जा सकता हूँ। मैं अगर सोचूं नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही चाहिए, तो मुझे और मिलेगा। ये कन्वर्सेशन विद गॉड कहता है, और मेरी विचारधारा कन्वर्सेशन विद गॉड से ज्यादा मिलती है। तो मेरा जवाब यह है कि मृत्यु के बाद में वही होगा जो आप चाहोगे। न कर्म का सिद्धांत रहेगा, न पाप पुण्य रहेगा, न स्वर्ग है न नरक है। आप जो चाहोगे वो आप क्रिएट करोगे। अभी जब हम ये कहते हैं कि राजा ने सोचा कि हम भिखारी बन जावे, तो एक बात हमारे दिमाग में बैठती है। मगर आगे सोचो कि कुछ लोगों की तो जिंदगी इतनी दर्दनाक होती है कि हम सोच भी नहीं सकते। जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास वो निर्भया रेप का केस हो गया, वो जो लड़की थी बेचारी, उसके ऊपर कितनी यातना गिरी होगी। कोई आत्मा क्या ये सोच सकती है कि मैं ऐसा जीव धारण करूं और मैं ऐसे दुख धारण करूं? अभी यूक्रेन में लाखों लोग बेचारे बेघर हो गए, उनका घर टूट गया, कुछ फैमिली मेंबर्स मर गए, कुछ भाग रहे हैं, और वो जो भाग रहे हैं उसमें प्रेग्नेंट लेडीज भी है। अभी उनकी फ्लाइट सोचो क्या खराब हालत होगी। अभी ऐसी खराब हालत क्या कोई आत्मा सोचेगा? ये मानना हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो मेरा जवाब ये है कि वेदांत तो कठिन है ही, वेदांत बहुत डिफिकल्ट है। और धर्मगुरु लोग जो वेदांत को जानते हैं वो प्रैक्टिकल है, वो समझते हैं कि ज्यादातर पब्लिक वेदांत को नहीं मानेगी। तो
ज्यादा पब्लिक क्या मानेंगी, भैया भगवान है, तुम तुम्हारे कर्म कर रहे हो, भगवान तुम्हें कर्म के फल दे रहे हैं। हाँ, ये कुछ मानने लायक बात हो गई। वो निर्भया लड़की ने कुछ पाप किए होंगे और उसको ये सजा हुई, ये हमारे दिमाग में बैठ सकता है। कुछ लोग जो कर्म का सिद्धांत को भी नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, उनका फिर यही स्टेटमेंट है कि एक बहुत बड़ा इनजस्टिस हो गया, वो या तो भगवान को ब्लेम करेंगे, या समाज को ब्लेम करेंगे, या तो सरकार को ब्लेम करेंगे। मगर वो ब्लेम करने से कोई चीज का सॉल्यूशन नहीं होता है। मेरा सबमिशन ये है कि हम जो अपना खुद का जो स्वरूप है, आत्मा स्वरूप, वो आत्मा स्वरूप इतना हाई डिवाइन है कि ये जीवात्मा से हम सोच भी नहीं सकते हम कि हमारा ऐश्वर्य कितना है। हमारा ऐश्वर्य अनंत है। वो अनंत ऐश्वर्य वाले जो एंटिटी है, वो जब सोचेगी कि मुझे दुख झेलना है, क्यों झेलना है, बस एक खेल के कारण, कोई खेल के लिए मुझे सोचना है, तो वो कुछ भी सोच सकता है। वो उसमें निर्भया रिफ्यूजी भी हो सकती है, आई मीन निर्भया विक्टिम भी हो सकती है, या यूक्रेन की रिफ्यूजी भी हो सकती है। अभी नील बोलता है, ये जैसे गीता में अर्जुन और कृष्ण के सवाल जवाब चले रहते हैं, ऐसे जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में भी महावीर भगवान या बुद्ध भगवान अपने शिष्यों के साथ सवाल जवाब करते हैं। इसी तरह से नील और भगवान के सवाल जवाब चलते हैं। नील कहता है कि नहीं, ये तो मुझे मानने में नहीं आता है। तो भगवान खुश होकर बोलते बराबर है, यही तो स्कीम है। स्कीम ये है कि जब तुम जीवात्मा बनोगे तभी तुम ये सोच भी नहीं सकोगे, और जब तुम देह को छोड़ोगे, जब आत्मा स्वरूप प्राप्त करोगे वापस, मतलब आत्मा स्वरूप तो हमेशा ही है, उसमें प्राप्त करना कुछ नहीं है, खाली देह को छोड़ने की बात है, तब तुम अपने आप को अनंत ऐश्वर्यवान अनुभव करोगे, फिर आपको आनंद ही आनंद है। ये CW जी कहता है। अच्छा, अभी इतनी कठिन बातें हम कैसे माने, तो उसके भी दो जवाब है, जो वैसे हर एक में अलग अलग जवाब है। गीता कहती है कि आप कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग करो। पतंजलि ने अष्टांग योग कहा है, वो हमने चर्चा की है। जैन धर्म में 5 महाव्रत कहे हैं, वो 5 महाव्रत को धारण करो, उसके हिसाब से जियो। CW जी कहता है व्यवस्था ऐसी है कि आप ये नहीं समझ सकोगे, ये व्यवस्था आपने ही की है, तो दूसरों को दोष मत दो। फिर उसमें एक खेल और चलता है कि जीवात्मा ये प्रयत्न करता है कि मैं शरीर और उसके लिमिटेशंस के साथ ही वेदांत को भी समझ लूं, ब्रह्म ज्ञान को भी समझ लूं। तो ऐसे तो लाखों में कुछ लोग होते हैं वो जो प्रयत्न करते हैं। तो अगर आपको जीते जी ब्रह्म ज्ञान करना है तो आप ये सब करो। अगर आपको जीते जी कुछ नहीं करना है, यार गोली मारो सबको, ब्रह्म ज्ञान सब एब्स्ट्रैक्ट है, एब्सर्ड है, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं। मगर जब आप देह को छोड़ोगे तब ऑटोमेटिक आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि आप आत्मा हो। उसके बाद का आपका नेक्स्ट बर्थ इंस्टेंटेनियस नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है, किसी की सजा के हिसाब से नहीं है। आप जो चाहोगे वही होगा, मगर आपका चाहना और वो चाह का रियलाइजेशन होना वो इंस्टेंटेनियस है। तो जो समय आत्मा के लिए 1 मिनट का होगा, वो जीवात्मा के लिए बहुत बड़ा लंबा समय भी हो सकता है। तो ये सब रिलेटिव कंसेप्ट है कि इंस्टेंटेनियस है वगैरह। फिर मैंने जो आपको नोट भेजी है उसमें 5वां पॉइंट है अधिकारी। अगर आपको जीते जी ये सब कुछ समझना है तो आपको उसके लिए अधिकारी होना पड़ेगा। अभी दिनकर हमेशा सवाल कर रहा है कि ये अधिकार की बात छोड़ो, अधिकारी क्यों बनना, ऐसी शर्तें क्यों लगाना, मुझे तो नॉलेज चाहिए, ऐसे ही चाहिए। तो मयूर भाई नायक ने एक सुंदर श्लोक भेजा था, ये करीब 10-15 दिन में ही।
वो श्लोक ऐसा है कि कुछ लोग जो फिलोसॉफी का नहीं समझते हैं, वो दान इसलिए नहीं देते हैं कि वो सोचते हैं कि मेरा धन कम हो जाएगा, मैं गरीब हो जाऊंगा। तो कार्पण्य भाव से, कार्पण्य मतलब गरीबी के भाव से, भय से वो दान नहीं करते। अच्छा, जो फिलोसॉफी समझे हुए हैं वो दान इसलिए करते हैं कि अगर मैं दान नहीं करूंगा तो गरीब हो जाऊंगा। सोचो, कार्पण्य भय, गरीब हो, सॉरी, दारिद्र्य भय, दारिद्र्य भय तो एक ही साधन है, एक ही डर है। वो एक डर के कारण जो अणसमझू लोग हैं वो दान नहीं करते, जो समझू लोग हैं वो ज्यादा ना ज्यादा दान करते हैं। मैं रमेश भाई को शायद 20 साल से पहचानता हूँ। वो 20 साल पहले जितना डोनेशन करते थे उससे आज कहीं अधिक गुना दान करते हैं। तभी भी करोड़ों का दान करते थे, आज भी करोड़ों का दान करते हैं, वो कभी गरीब हुए ही नहीं। सवाल ये है अपनी अपनी समझ का। तो जिसने ये फिलोसॉफी समझ ली वो उसका अधिकारी हुआ, उसने अपने कर्मयोग वगैरह किया, तो उसको जीते जी सब समझ में आ जाएगा। अभी मतलब कि अधिकार की इश्यू तो है, संसार में है। आप अधिकार प्राप्त करोगे तो आपको जीते जी सब कुछ समझ में आ जाएगा। अधिकार प्राप्त नहीं करोगे तो मृत्यु के बाद में समझ में आ जाएगा। मगर ये 84 लाख भाव का बंधन, ये सब वार्ताएं हैं। कोई बंधन आपको नहीं है, क्योंकि आप आत्मा स्वरूप हो, आपको कोई भी बंधन नहीं है। अभी ये मेरा लास्ट पॉइंट है कि सिंस यू आर योरसेल्फ आत्मा स्वरूप, यू आर ओमनीपोटेंट, आपके पास अनंत ऐश्वर्य है। आपने वॉलंटरीली, स्वेच्छा से जो अनुभव आपने चूज किया वही अनुभव आप ये जीवन में भुगत रहे हो। मेरा मित्र दिनकर जोशी है, उसने ये जन्म में बहुत सारे दुख सहन किए, इतने दुख सहन किए कि जब भी मेरी बहन दिनकर को याद करती है तो वो जरा झिलमिला उठती है कि ऐसा क्यों, भगवान ऐसा अन्याय क्यों करता है। मगर CWG के जवाब यह है कि दिनकर की आत्मा अनंत ऐश्वर्यवान है। दिनकर की आत्मा ने स्वेच्छा से जो कुछ सोचा वो अभी वो भुगत रहा, और दिनकर अगर अधिकारी हो जाएगा तो समझ लेगा, अधिकारी नहीं होगा तो जब तक चाहेगा तब तक ये अनुभव चलेंगे। देह के अंत के बाद में वो फिर अनुभव कर लेगा कि वो इन्फिनाइट ऐश्वर्य का स्वामी है। तो ये गीता, वेदांत, CWG सब, कल सुबह मैं जल्दी उठ गया था, बैठे बैठे सब कुछ विचार मेरे दिमाग में एकदम पट 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 बैठ गए, तो मैं खुश हो गया। फिर ये नोट बना के आपको भेजी है, वो नोट मैंने आपके साथ अभी डिस्कस कर ली। नाउ फॉर वी आर अगेन ओपन फॉर डिस्कशन। कनु भाई नहीं, तुम्हारे, एक बाकी रहेगी रश्मिन, हु क्रिएटेड गॉड? हाँ यस, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो वेदांत में और CWG में इसका जवाब है। एक्चुअली मैंने ये सवाल इसके लिए रेज किया था कि जो कुछ सनातन सवाल बोलते हैं उसमें 6-7 सवाल आते हैं, उसमें ये भी एक सवाल है। क्योंकि जब कोई आदमी कहता है कि भाई ये संसार को किसने उत्पन्न किया, तो गीता जवाब देती है कि कृष्ण भगवान ने उत्पन्न किया। तो इंटेलिजेंट आदमी या रेशनलिस्ट को एक ऑटोमेटिक सवाल आता है, भाई कृष्ण को किसने खड़ा किया। अगर आप बोलते हो कि संसार को कृष्ण भगवान ने किया, तो कृष्ण भगवान को भी किसने किया होगा ना। जिसने भगवान को किया उसको किसने किया। तो दैट क्वेश्चन गोज ऑन इन्फिनाइट, उसका अपने को लगता है जवाब ही नहीं मिलेगा। और एक वार्ता में आता है कि याज्ञवल्क्य और गार्गी दोनों महान संत थे, और उनके बीच में जब चर्चा हुई तो ये सवाल पर चर्चा अटक गई थी। जब गार्गी ने पूछा भगवान को किसने बनाया, तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि गार्गी तू अभी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, अगर वो लिमिट के बाहर का सवाल पूछेगी तो तेरा सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मगर CWG ये कहता है और वेदांत भी यही कहता है कि एक अनंत परमात्मा है। वो परमात्मा कहो, ब्रह्मन कहो,
अनंत सागर कहो, आप जो भी कहना चाहो कहो, वो अनंत सागर अनंत रूप धारण करता है। उसमें अच्छा, अभी मैं वेदांत की बात करता हूं, तो एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण से सबसे पहले हिरण्यगर्भ हुआ। ये वेदांती शब्द है। हिरण्यगर्भ मतलब ईश्वर, गॉड। वो गॉड भी एक ही नहीं है, बहुत सारे गॉड हो गए। कृष्ण भगवान भी हो गए और जीसस क्राइस्ट के पिताजी भी हो गए, मोहम्मद पैगंबर जिसको खुदा मानते हैं वो भी हो गए, बहुत सारे नाम हो गए। एक स्टेटमेंट ये है कि ईश्वर तो एक ही है, बहुत लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं, या तो आप जो भी कहो वो एक ईश्वर भी बहुत सारे अवतार किए। और उसके सिवाय हम सब जो भी है वो सब भी ब्राह्मण की इच्छा के मैनिफेस्टेशन है, व्यक्तव्य है, व्यक्ति है। तो ये सवाल मैंने खास इसी कारण के लिए रखा था कि ये सवाल जिसके जवाब दिमाग में आता है और जो बहुत समय तक सोचता है कि क्या है क्या है क्या है, तो फिर जब ये जवाब मिलता है तो उसे अच्छा लगता है कि हाँ ये अभी जवाब है, अगर वो एक्सेप्टेबल हुआ तो। जिसको एक्सेप्टेबल नहीं है उसको फिर वो सवाल कायम रहेगा। फिर से मैं कहता हूं कि ये सवाल का जवाब ये है, किसी को किसी ने उत्पन्न नहीं किया, एक परमात्मा ही है, एक चैतन्य ही है, एक ब्रह्मन ही है। वो एक चैतन्य अनंत रूपों से मैनिफेस्ट हो रहा है, और वो मैनिफेस्टेशन जो है, जो व्यक्तव्य है, जो सगुण है, वो संसार है। जो निर्गुण है या तो अनमैनिफेस्ट है, वो चैतन्य है या ब्रह्मन। अभी चैतन्य को हाँ, अनेक रमत करने की इच्छा हुई और करेक्ट, हम सब मच्छरों को पैदा किया। करेक्ट। बराबर। हाँ, तो जो बराबर। चैतन्य जिसको आप अविकारी बोलते हो, तो हाँ, उसको विकार क्यों हुआ? हाँ, तो वेदांत में कहते हैं उसका कोई जवाब नहीं है। हाँ, और सीडब्ल्यूजी में कहते हैं कि वो चैतन्य को अपना अनंत ऐश्वर्य को डीपली रियलाइज करने के लिए उसने ये संसार उत्पन्न किया है। क्योंकि दिनकर तुमने ये कहा था कि जब तक खराब नहीं है तब अच्छे की कीमत ही क्या है, जब तक ब्लैक नहीं है तब तक व्हाइट की कीमत ही क्या है। और कन्वर्सेशन विद गॉड में मेरे ख्याल से पहले 1-2 चैप्टर में ही आ जाता है कि मान लो कि पूरी दुनिया सफेद ही है, सब सफेद है, तो कोई कलर ही नहीं रहेगा, किसी का कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसमें ग्रीन भी है, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, सब। हाँ, अभी हमें कलर का महत्व लगता है। ये भी सिर्फ खेल खेलने के लिए ब्रह्मन ने किया है। नहीं, उसको जो विकार हुआ ना, उसके सामने मुझे ऑब्जेक्शन है कि क्यों खेल खेलने को हुआ। एक सेकंड, उसको मतलब क्या? मतलब चैतन्य को। ना, तो यू आर चैतन्य, यू दिनकर जोशी इज आत्मा, इज चैतन्य। योर चैतन्य वो इज फॉर एवर अनंत ऐश्वर्यशाली। तो तुमने सोचा ये साला ये अनंत ऐश्वर्य का क्या करना, तो तुमने सोचा चलो थोड़ी सैर करते हैं, थोड़ा दुख भुगतते हैं, तो अभी हाँ अभी ऐश्वर्य की मजा आ रही है। There is no third party. You are trying to blame third party, but you are आई एम you. नॉट ट्राइंग टू ब्लेम, आई वांट टू लर्न। क्योंकि ये सब है ना, ये हाँ, गीता का सेकंड अध्याय है ना, वो हाँ। फर्स्ट क्लास एनेस्थेटिक स्प्रे है। तुमको मृत्यु का भय हटा दिया, तुमको कर्म का मतलब कि रिजल्ट का भय हटा दिया। बस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, साला तू काम कर, देने वाला तो मैं ही हूँ। डोंट हैव एनी फ्रस्ट्रेशन व्हाटसोएवर। और मरता कहाँ है? ये सब यही है ना। बराबर, बराबर। हाँ, तू मरता ही नहीं है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। मतलब कि इट्स अ वेरी गुड, आई मीन, सो आई डोंट वांट टू ये तो लाइट डिस्कशन हो गई, लेकिन यस, इट्स स्टिल ये जो विकार की बातें दिमाग में नहीं जाती है अनुभव की, और मैं वी विल So ट्राई। as per CWG, तुम ये सोच भी नहीं सकते हो। That is as per your own plan. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी इसके सामने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। इसमें भी अपना अपना ही दोष है। ओके, Okay. ठीक है, अभी दूसरे की बारी, मेरा Any खत्म। other comment? Anybody?
Rashmin bhai, हाँ हाँ शीलाबेन बोलो. yeah, so I like this one, the way you said, I'm very happy today that you have found the answers, and then the way you have given the whole thing, that was very nice. One very small query. I Yes, think please. in current time, once you cross 60, 65 or whatever, what Yeah. I find all around is, as somebody had raised the first question, that you are not afraid of your own death. You are afraid of the loneliness which you might suffer if you're left alone because of the death of somebody very close. uh, अने I mean आत्मा है, लेकिन हम सब जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, whether as a husband, wife, or as a mother, child, that is because of sharir, not because of us. I mean, what our connectivity on this earth or in the family is by way of our present jivatma. So the pain and everything which you feel is because of the lack of the person or because of the fear of being left alone. So it is not mainly of the death of somebody, but your own fear of your unpleasant experience of spending the rest of the life alone or whatever. Correct. Any suggestion as to how to overcome that or go beyond that? सर पहले आप जवाब दीजिए, फिर मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा. नहीं, आप ही पहले बोल दीजिए. नहीं, पहले मैं नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं, पहले आपको बोलना. आई एम pretty sure आप दोनों के जवाब का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा. कृष्णकांत जी, Yes, उनके right. बोलने के बाद कुछ पूछने का नहीं रहेगा, तो इसलिए आप पहले बोल दीजिए. नहीं, सर ने हमें इतनी छूट दी है ना कि सर को वो चीज इतने सालों से देखते हैं कि हम झूठ बोलो, गलत बोलो, वो मतलब वो उससे मतलब ही नहीं है. मतलब सर उसके परे हैं अभी, मतलब उसके बेसिकली. आपसे ज्यादा मुझे अनुभव है, डोंट वरी. सर बहुत चेंज हो गए सर. पहले से हम जो 11-12 साल से एक दूसरे को जानते हैं, उसमें भी बहुत चेंज हो गए सर. प्लीज सर, प्लीज. સીતાનું હરણ થયું, પછી હરણની સીતા થઈ કે નહીં? થઈ. તો મેં આ 2 કલાકમાં બધું કહી દીધું ઓલરેડી. સીતાબેન, તમારો જવાબ આવી ગયો ઓલરેડી. Okay. Sorry. But the simple point is, this is the first query raised by Dharmen Bhai. I am not afraid of my death, but I am afraid of the death of my loved ones. Okay. So it is good that you have raised the query again. So I will give the answer in some different words if that makes it more acceptable. एक तो पहले तो डेथ किसी की होती ही नहीं है. जो अनंत सागर और लहर का जो इलस्ट्रेशन है, बहुत सुंदर इलस्ट्रेशन है. ये भी कृष्ण कुमार जी अपने धर्म ग्रंथों में ही दिया हुआ है. ये मेरी कोई इन्वेंशन नहीं है, मगर मैं बहुत कुछ पढ़ते रहता हूँ, तो उसमें से ये मुझे अच्छा लगा और मैंने आपके सामने पेश किया है. अनंत सागर में लहरें होती है, लहरें उठती है, समा जाती. इस लहर में मैं हूँ, दूसरी लहर मेरी पत्नी है, दूसरी और लहरें मेरे बच्चे हैं, दूसरी और लहरें मेरे मित्र लोग. वो लहरें एक अगर समंदर में समा गई तो पानी तो रहता ही है. मतलब कि आत्मा लेवल पर मेरा, मेरे कुटुंबी जनों का, मित्रों का संबंध जैसा का वैसा ही रहता. उसमें वो संबंध में कोई कटौती नहीं होती है. मगर संसार में एज ए जीवात्मा दिनकर जब बच्चा था तब उसके पिताजी का देहांत हो गया. तो नेचुरली दिनकर ने बहुत कुछ सहन किया, और वो बचपन के उम्र से लेके आज तक उसने बहुत सारे दुख सहन किए. क्यों किए? उसने खराब कर्म किए थे, पाप कर्म किए थे. कर्म वो कैरोट एंड स्टिक वाली कमर्शियल धर्मगुरु की वार्ता है. वेदांत ये कहता है कि दिनकर के पिताजी, उनकी माताजी, उनका फैमिली मेंबर, सबकी आत्माओं ने साथ में मिलके स्वेच्छा से एक नाटक का प्लॉट बनाया. फिर वो आत्मा, जो हर एक आत्मा ओमनीपोटेंट है और अनंत आनंद में है, उसे कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, मगर वो सभी आत्माओं ने जीवात्माओं का रूप धारण किया और साथ में मिलके एक नाटक किया. वो नाटक में दिनकर के पिताजी की आत्मा जल्दी संसार छोड़ के चली गई. दिनकर ने बहुत सारे दुख सहन किए. क्यों सहन किए?
क्योंकि दिनकर की आत्मा ने खुद ये तय किया था। दिनकर की आत्मा प्रोड्यूसर है, एक्टर है, दर्शक है, अनुभूति कर रही है, सब कुछ वो जीवात्मा कर रही है। उसमें कोई सजा नहीं है, कोई कारण नहीं है। उसने ये सोचा, इसके लिए हुआ, बस। वो जब ये सोच छोड़ देगा तो विदुर जी ने महाभारत में कहा है, मोक्ष तत्क्षणम। जब आत्मा चाहेगी कि मुझे अभी ये सब संसार नहीं चाहिए तो आत्मा छोड़ देगी, बात खत्म। CWG रिपीटेडली कहते हैं कि हर एक इंसान का जन्म और उसका मृत्यु, वो कहाँ जन्म लेता है, कैसे मृत्यु करेगा, वो हर एक चीज उसकी आत्मा खुद नक्की करती है। उसके सिवाय के जो भी स्टेटमेंट्स है वो धर्मगुरुओं के स्टेटमेंट्स है, वो वेदांती स्टेटमेंट नहीं है। क्योंकि वेदांत में जितने भी उपनिषद मैंने पढ़े, वो सब उपनिषद का फंडामेंटल कोर स्टेटमेंट ये है कि यू आर परमात्मा, यू आर चैतन्य, यू आर ब्रह्म, तत्त्वम असि। ये एक ही स्टेटमेंट सबका है। आप अगर ब्राह्मण हो, आपको कौन सजा करेगा? कोई नहीं करेगा। आपको आपके पति से, आपके कुटुंबी जनों से वियोग कौन कराएगा? कोई करा नहीं सकता है, क्योंकि आप पानी हो। पानी हमेशा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पानी कभी समंदर से अलग होता ही नहीं है, लहरें अलग होती है। तो आपको संसार में यह अनुभव होगा। क्यों होगा? भैया आपने खुद चूज किया है, आपने चूज किया है, वही होगा, उसके सिवाय कुछ भी नहीं होगा। Okay. शीलाबेन, I don't know. It is a good answer. I want like to hear Krishna Kumar also. सर, ये जैसा आपने कहा ना कि मतलब लास्ट कई मीटिंगों में और विशेष रूप से आज की मीटिंग में हाँ जैसे जी, कई चीजों के आप हमें जवाब देते हैं या समझाते हैं या बताते हैं, तो शायद उसका वो वक्त अभी तक आया नहीं है या हम उसके इतने अधिकारी नहीं है कि उस चीज को समझ सकें। जैसे आप ये बार बार में कहते हैं ना कि सर ये सब कुछ हम जो सोचते हैं, हम आत्मा जिस रूप में हमने सोचा कि हम जन्म लेंगे, इस तरीके से हमारी मृत्यु होगी, वो सब हमारा सोचा हुआ। आपने निर्भया का एग्जाम्पल दिया। इसको समझने में शायद मुझे लगता है और 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगे शायद इसको। शुरू में तो बिल्कुल यकीन नहीं आता था, अब धीरे धीरे ये आ रहा है कि शायद हम समझ नहीं पा रहे, तो जब टाइम आएगा तब समझेंगे। तो वो तो एक बात हो गई सर। अब नाउ आई विल कम टू द शीलाबेन जो क्वेश्चन है उसके ऊपर। शीलाबेन, मेरा ऐसा मानना है कि मतलब हम जिसके अंश हैं वो लिमिटलेस है, वो लिमिटलेस है। हम फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट है, राइट? तो जितना हम लाइफ में फाइनाइट बने रहते हैं, जितना हम अटैच्ड बने रहते हैं कोई भी चीजों से, एक अपना दायरा छोटा करके रखते हैं, सारी प्रॉब्लम वही जनरेट हो जाती है उसके अंदर। सो जैसे ही हम एक विराट का हिस्सा अपने आप को मानते हैं और चारों ओर उसी विराट का दर्शन करते हैं, तो हमारा जो ये अटैचमेंट है ना, जो चाहे हमारे वर्क के साथ में है, चाहे हमारे फैमिली के साथ में, मेरा अपना स्पाउस के साथ है, बच्चों के साथ में है, तो हमारी प्रॉब्लम, हमारी फियर उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। मैं इसके 2-3 एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि जैसे मेरी मदर है, एडवांसिंग एज है, और अब नेचुरल एज के हिसाब से तबीयत कभी अच्छी कभी खराब भी रहती है। तो मुझे जो पीड़ा 2 साल पहले होती थी, साल भर पहले होती थी, अभी भी होती है, ऐसा नहीं कि कम नहीं होती है। लेकिन आप एक बार जरा सा रियलाइज कीजिए कि हम थोड़ा सा अपनी सोच को इस तरीके से देखें कि मदर के रूप में कितनी मदर हमारे आसपास है जिनसे हमारा इंटरेक्शन होता है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई हम वृद्ध आश्रम में ही जाए, वहां पे जो भी हमें सुबह से शाम, जो भी उनकी एज ग्रुप में महिलाएं दिखती है, अगर उनमें एकदम मदरली फीलिंग आती है, अंदर से मदरली फीलिंग आती है, we never feel कि we are having only just one mother, same daughter, same brother, same किसी भी तरीके से जब हम दूसरे से जितना ज्यादा रिलेट महसूस करते हैं, जेन्युइनली रिलेट महसूस करते हैं उससे, उतनी हमारी दुनिया विस्तृत होती जाती है, उतना हम इनफाइनाइट की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो फिर हमारा कोई एक हिस्सा कभी कोई भी वजह से, जो रश्मि भाई ने बताया, उस मैनिफेस्टेशन की वजह से या उनकी हर सोल की अपनी एक लाइफ जर्नी की वजह से अगर कभी हमारे से अलग होता है, गॉड फॉरबिड, तो वो शायद उसकी पीड़ा का एहसास उतना नहीं होगा। लेकिन जितनी हमारी दुनिया, हमारी सोच, हमारा सुबह से शाम कार्यकलाप जितना लिमिटेड रहेगा, जितना फाइनाइट रहेगा, जितना मतलब हम अपने आप को नैरो कर लेंगे, उतनी ही तकलीफें बढ़ने वाली है बाद में उसके अंदर। अच्छा, ये डेथ की बात तो बहुत बात की है। मैं डेथ के पहले एक छोटी चीज बता रहा हूँ कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, अभी मान लो विदेश चले गए, अब वो आ जाएंगे, कल आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, 5 साल बाद आएंगे, फिर उनकी थॉट प्रोसेस
हमारा तो उनके प्रति प्यार बढ़ता जा रहा है, मान लो उनका नहीं बढ़े, मान लो उनका प्यार हमारे प्रति कम हो जाए, मान लो वो हमें डिसरिगार्ड करे एक सेकंड के लिए, जो हमारे हाथ में ही नहीं है, तो ये हम खुद इनवाइट कर रहे हैं हमारी पीड़ा को। तो हम क्यों, तो भाई हम हमारे जैसे बच्चों का एग्जाम्पल लेता हूं, तो हम प्योरली एक माध्यम है, प्योरली एक माध्यम है, हमारा कोई पिता था, हम किसी के पिता हैं, ये सिलसिला तो नेचर का है, उस तरीके से ही चलता रहेगा। लेकिन हम क्यों उससे इतना ग्लूड रहे, क्यों इतना अटैच रहे कि ये नहीं तो बस दुनिया का अंत हो गया एक तरीके से, बिल्कुल। तो ये सोच हमें चेंज करनी पड़ेगी कि ये जो लिमिटेड फाइनाइट सोच के साथ हम नहीं जी सकते, क्योंकि हम इनफाइनाइट के हिस्से हैं, और जब इनफाइनाइट है तो हमारी हर चीज में इनफाइनाइटनेस ही होनी चाहिए उसके अंदर, तो ही हम उसके साथ एकाकार महसूस कर सकते हैं। और वो गॉड तो सब में है, जो मेरे में है, जो नेबर में है, वो दूसरे शहर में, जो आप यूक्रेन में है, रसिया में है, सब जगह। तो हम क्यों तो उससे हेट्रेड रखें, क्यों उससे दुराव रखें, क्यों उससे मतलब इस तरीके से महसूस करें। तो सोच का दायरा थोड़ा सा अगर जेन्युइनली बढ़ता है ना, तो मुझे लग रहा है ये फियर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, फिर उसके लिए शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आई एम प्रीटी श्योर नहीं पड़ेगी, ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन फॉर्चुनेटली, लेकिन ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल लगता है। I totally agree. I mean, this is the answer which I knew I wanted, in the sense I have seen मेरे कुछ थोड़े से करीब के लोग हैं जिनका की नॉलेज बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअल और रिलीजियस, उनको भी मैंने इस तरह की विषम परिस्थिति में थोड़ा सा हिलते डुलते देखा है। तो दैट इज व्हाई वो आंसर मुझे लग रहा था कि जो लोग रियली इतना जानते हैं, चाहे भक्ति मार्ग में, कुछ तो एकाध को रश्मिन भाई भी जानते हैं, कोई और किसी और मार्ग में, लेकिन फिर भी इस तरह की ट्रेजेडी को सहन करने की जो वो एक थोड़ी सी, इट टेक्स टाइम, दैट इज व्हाई आई वाज सर्चिंग फॉर द आंसर। बट जो तुम कह रहे हो ना कृष्ण कुमार, वो मैं मींस आई टोटली अग्री विद दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट कि जितना वो बोलते हैं ना कि जैसे ही मोह खत्म होता है वैसे ही व्यक्ति या वस्तु को खोने का भय कम हो जाता है। आपका जैसे ही मोह खत्म हुआ वैसे ही खोने का भय खत्म हो जाता है। तो द फर्स्ट थिंग इज अटैचमेंट। एज सून एज यू गो आउट ऑफ अटैचमेंट, तो व्यक्ति, स्थिति, जगह, थिंग्स, सबका मोह खत्म हो जाता है। जैसे मोह खत्म हुआ वैसे इसको खोने का डर खत्म हो जाता है। आई एग्री विद दैट। आई टोटली रेजोनेट विद व्हाट आंसर यू हैव गिवन। थैंक यू। Sorry, Rashmin bhai, my answer is more telling with Krishna Kumar than yours. No, બરાબર છે. Actually, શીલાબેન, I understand. તમે પણ સત્સંગ ઘણા વર્ષોથી કરો છો, ગિરધારીલાલ દાગાજી સાથે કરો છો, બીજા મિત્રો સાથે, બીજા સંતો સાથે કરતા હશો, એટલે તમે સવાલ પૂછ્યો એ સારું જ કર્યું. So there is more clarity. And कृष्ण कुमार जी, आपने जो जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है. आई फुल्ली एग्री. और ये सत्य इतना सुंदर होता है, इतना विशद होता है कि उसको 10 तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. और जब हम 10 एक्सप्रेशन पढ़ लेते हैं, इसी के लिए मैंने गीता की 10-12 कमेंट्री पढ़ी है, कि उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स अपनी नजर में आते हैं, तभी अपना मगज में क्लैरिटी और ज्यादा हो जाती है. जी सर, बराबर, एकदम बराबर है. सब आपसे ही देख देख के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, बहुत सारे सवाल नहीं समझ में आ रहे हैं अभी भी शायद, लेकिन अब पेशेंस बढ़ रहा है. कई बार तो एकदम आउटराइटली रमेश जी और हम बात करते हैं कि यार रश्मि भाई बोलते हैं ये तो बिल्कुल मंजूर नहीं है यार, रमेश जी भी बोलते हैं कभी मुझे, मैं भी रमेश जी को बोलता हूँ, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि शायद हम उसके अधिकारी नहीं है. 2 महीने, 6 महीने, 12 महीने बाद हमें आपकी बात वो भी समझ में आने लग जाएगी, जो आज आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एज इफ कि हम प्राइमरी वाले स्टूडेंट हैं और अभी कॉलेज वाली बातें हो रही हैं, तो अभी हम ABCD के गगड़े में उलझे हुए हैं थोड़े से. अगर कृष्ण कुमार जी, मैं आपको एक बात बताऊं. हाँ. ये मेरे दिमाग में सवाल उठा था कि भगवान ने ये मृत्यु की सिस्टम ही क्यों की. हाँ, हर रोज कुछ ना कुछ लोग मर रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है, ये तो एक है ही जो भी मुझे पसंद नहीं है, मगर ये तो संसार ऐसा है कि जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे के मार के ही जिंदा रह सकता है. हाँ, तो ये मारना भी साला बिल्ट इन है. ये बहुत बहुत खराब चीज है. ऐसी ये भगवान को अक्ल नहीं है क्या? ऐसा सब मैं सोचता था. और ये सोच मेरी 20 साल तक चली है. ऐसा नहीं कि मुझे फटाक से जवाब मिल गया. अच्छा, कन्वर्सेशन विद गॉड में उसका जवाब दिया है. वो पुस्तक पहली बार जब मैंने पढ़ ली तो मुझे रजिस्टर नहीं हुआ, दूसरी बार पढ़ ली तभी भी रजिस्टर नहीं हुआ, और तीसरी बार वो बुक पढ़ी, उसके पहले मैंने गीता, वेदांत बहुत कुछ पढ़ लिया. फिर तीसरी बार जब CWG पढ़ी तभी दिमाग मेरे को लगा, अरे ये तो सामने कुछ लिखा हुआ है क्लियर कट.
मेरा जवाब दिया हुआ है। तो वेदांत और ये हम जो निश्चय नहीं की फिलोसॉफी की बात कर रहे हैं, वो तो ऐसी ही है कि वो हमें समझ में आवे, उसके पहले हमें अधिकारी बनना ही पड़ता है। मुझे अधिकारी बनने में 20 से 30 साल लग गए, आपको तो 10 ही साल लग रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, अभी और टाइम बाकी है सर। जो ये आप सवाल समझ में नहीं आ रहे हम लोगों को, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। पूछ लो रमेश भाई को। रमेश भाई हाँ रमेश भाई, कुछ सवाल नहीं आते ना सर समझ में, अभी हमें टाइम लगेगा थोड़ा समझने में। उनका वो म्यूट है, म्यूट रमेश है? भाई को शायद वो अनम्यूट करने का नहीं समझ में आएगा। नहीं कर लेंगे। रमेश भाई अनम्यूट कीजिए, देखिए आपकी बात सुनते हैं। रश्मिन भाई हाँ हाँ जी, हाँ जी। कर लिया। हाँ एक मिनट रमेश भाई जरा zoom कीजिए आपने साहब भैया। ही इज द सेकंड सीनियर मोस्ट। नहीं सर, उनका लॉगिन 2 जगह से है, जो जिसपे खुद है ना रमेश भाई, वो अभी भी म्यूट पे हैं एक्चुअली। इसलिए वो जो कहना चाह रहे हैं वो हम सुन नहीं पा रहे हैं। बराबर है। आप वो कोई बात चार्ट नहीं में सर, भी मैं लिख सकते हैं। मैं समझ के बाद में चाहे लिख दूंगा सर, कोई बात नहीं। रश्मिन भाई, हाँ जी, बोलो बोलो। आप जो कह रहे हैं ना कि जो हम चाहेंगे वही होगा, I mean, I totally agree with this, that what you desire will manifest, and then that really makes us so responsible कि यदि आपको एक बार पता है कि आप जो चाहेंगे वो होगा, तो आपको क्या चाहना है उसके लिए you have to be very very responsible, in the sense, हाँ। तो आई थिंक वेदर यू टॉक ऑफ कर्म का सिद्धांत और वेदर यू टॉक ऑफ दिस वन कि आप जो चाहेंगे वो होगा या आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा, बोथ ही थिंग्स मेक यू वेरी रिस्पॉन्सिबल कि आप कोई भी गलत काम ना करें, गलत डायरेक्शन में ना जाएं, क्योंकि आप जैसा चाहेंगे जिस डायरेक्शन में जाएंगे वही आपको फलीभूत होगा। तो यू हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, दैट इज द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गेट्स इनकलकेटेड इन यू। Actually, Shilaben, I'll share my experience with you. As I have earlier said, in 1987, मुझे ये लग रहा था कि बंबई में इतने भिखारी क्यों, ठीक है, और इतनी गरीबी क्यों, और वो बेचारे फुटपाथ पर जन्मते हैं, फुटपाथ पर खेलते हैं, फुटपाथ पर बड़े होते हैं, क्यों? हाँ, अभी ये सवाल बहुत लोगों को तो आता ही नहीं है। बहुत लोग अपनी गाड़ी में या कैसे भी चले जाते हैं रोड पर से, कोई गरीब है तो उनको कोई दरकार नहीं है। जिसको दरकार है वो या तो सरकार को दोष देता है या तो समाज को दोष देता है। अभी ईश्वर की कृपा से मैंने ये सोचा कि मुझे किसी को दोष नहीं देना है, मेरे से क्या हो सकेगा मुझे करने दो, ओके। वो मैंने करने का शुरू किया और 87 से लेके आज 2022 मुझे इतना आनंद हो रहा है। मेरा कर्मयोग, वो कर्मयोग के साथ में ही भक्ति योग मिल गया, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं मंदिर में जाके पूजा नहीं करता हूँ, मगर गरीबों की सेवा करता हूँ, वही मेरी पूजा है। वो गरीबों की सेवा में मैं 2 नंबर का पैसा नहीं लूंगा, कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, तो वो साथ में मेरा कर्मयोग में शुद्धि भी आ गई, ठीक है। तो आज मेरा ज्ञान योग ऑटोमेटिक हो गया, और ज्ञान योग हो जाने से सब दुख मिट जाते हैं, ऐसा वेदांत में कहा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे, दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दोगे, तभी अपनी यात्रा शुरू होगी। जब तक हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं तभी तक वहीं के वहीं बैठे रहते हैं। अग्री, टोटली अग्री। ये पोर्टेबल कोट है सर आज का, कि ये हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और दूसरों को ब्लेम करना बंद करना पड़ेगा। ये आई थिंक ये पोर्टेबल कोट के साथ में बिल्कुल आगे भी करनी पड़ाते हैं, और अगली मीटिंग तक इसको याद रखते हैं, इस चीज को बिल्कुल। आई थिंक उससे भी काफी ट्रांसफॉर्म होंगे बिल्कुल। और आप रमेश भाई से फोन पर बात कर लेंगे, और फिर ईमेल से सबको बता देंगे। हाँ जरूर जरूर बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर, many thanks sir. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. नमस्ते बहन। નમસ્તે. તૃપ્તિબેન, તમે 2 કલાક ચૂપ રહ્યા, એક સ્ત્રી કારણ કે અમે એનું કારણ છે, અમે નર્સરીના નિશાળિયા છે ભાઈ, અને ઘણા બધા ડાઉટ્સ હવે ક્લિયર થાય છે, એટલે હવે बोलवा बहन का ऐसा सर, इनकी फिलोसफी इन एक्शन है सर। ये जो काम करती है ना वो एक्शन में है, तो इनको बोलने की जरूरत नहीं है सर। बराबर, हम बहुत सबको बढ़िया काम करे, बहुत बढ़िया काम। राम राम सर।